Jai Bhim to all and very warm welcome. I, Sneha Magar, on behalf of Ambedkarite Students Association, welcome you all for the first public talk of the academic year 2017 and 18, which is organized by ASA. The topic of today's public talk is democracy and media. And we have with us Mr. Dilip Simandal, senior journalist from Delhi, as a guest speaker. I request you, sir, to come on the stage and have a seat. Thank you, sir. Now I would like to call Mr. Ajit Kumar to facilitate with a book. This is the book of AML series which has collection. This is the book of AML series which has collection of Ambedkar Memorial Lecture 2015 and which is edited by Ramaiah sir. It is my pleasure to introduce Mr. Dilip Simandal sir, who is one of the prominent senior journalists associated with major Indian houses for over 2 decades. Mr. Mandal started journalism with the Delhi edition of Dainik Jagran. Sir, everyone actually. I've worked in many media organizations. Sir, आपका तो वो बड़प्पन है कि don't explain it, but after that he was with Jansatta Kolkata edition. Yeah, so let's cut it out. Okay. Because I'm already 15 minutes, 25 minutes late. Yeah, okay, fine, sir. So moving ahead, as we know that, and it is well-known fact that media is the fourth pillar of democracy that strengthens the grassroots to parliamentary democracy. Media plays an important role to make government accountable for their duties and make sure the rights of the citizens to be protected. It contributes enormously in social, political, educational and economical empowerment of the disadvantaged social groups such as scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes, minority, women and other marginalized social groups. It has major stake in the spreading awareness of various important events that happen locally and globally. In the age of information technology, we are bombarded with a lot of information of multiple kinds. We get the pulse of the world events with just a click of mouse. The flow of information has increased manifold. The perfect blend of technology and human resources has not left a single stone unturned in unearthing rampant corruption in politics and society. The impact of media is really noteworthy. Excessive coverage of hype of sensitive news has led to communal riots at times. The illiterates own more prone to provocations than the literates. Constant repetition of the news, especially sensational news, breeds apathy and insensitivity. In the last, I would like to say that media acts as an interface between the common man and government. It is a very powerful tool with the ability to make and break the opinion of the people. So without taking much time, I would like to invite Mr. Mandal sir to deliver his talk. Sneha. Thank you, Sneha. Audible? Last row? Fine? Okay. So this is unplanned thing, huh? As I have been asked to talk about media and democracy, so I will be saying few things which we all know और कुछ चीज़ें जो मुझे भी नहीं मालूम. तो सबसे पहले वो चीज़ें जो हम जानते हैं, we all know about media, those things. First I will like to elaborate upon, and then जो हम नहीं जानते उस पर बात करेंगे, right? Can I use something? थोड़ा सा इसको गंदा कर सकते हैं क्या?
इसको शायद इसको करना चाहिए, ये इसको बचा लेते हैं। इस वाइट बोर्ड, नो इट्स नॉट वाइट बोर्ड। चलो या ना या फाइन, इट्स नॉट क्लासरूम ऑब्वियसली, बट मुझे याद रहेगा इसके लिए मैं 2-3 चीज़ नोट कर लेता हूँ, राइट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट मीडिया एज ए मास कम्युनिकेशन। 3 चीज़ों में एक चीज़ सबसे पहले, मीडिया इज कॉर्पोरेट। ये मैं वो चीज़ें बोल रहा हूँ जिस पर डिस्कशन नहीं हो सकते, वी कांट डिबेट। ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जो अपने आप आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ें ऐसी हैं। इंडियन मीडिया इज कॉर्पोरेट एंटिटी। सेकेंड इज आपका कॉम्बिनेशन इज देयर, Hindu upper caste, and third, this entity is impacting democracy badly. जो मुझे नहीं मालूम वो मैं बाद में बात करूँगा, राइट। इंडियन मीडिया इज बिग कॉर्पोरेट। ये बताने के लिए मुझे आपको शायद ये बताना पड़ेगा कि इंडियन मीडिया इंडस्ट्री की साइज़ क्या है। तो ये साइज़ बहुत बड़ा है। इसके अंदर जो कॉर्पोरेट्स इस मीडिया हाउसेस को चला रहे हैं, जैसे आप बॉम्बे देखें तो बॉम्बे का मीडिया हाउस मेनली आप ये कह सकते हैं कि देयर इज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जैसे आप अगर रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, देयर यू विल फाइंड दैट देयर आर एज मेनी एज more than 1 lakh newspapers and magazines are there, more than 600 news channels are there। लेकिन अगर बॉम्बे मार्केट को देखें, बॉम्बे को देखें तो सिर्फ एक एंटिटी अगर आप मैं लेता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, TOI ग्रुप। तो TOI ग्रुप बॉम्बे शहर में क्या क्या ओन करता है आप देखिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता होगा यहाँ का लार्जेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर, सेकेंड लार्जेस्ट न्यूज़पेपर सबसे बड़ा बिजनेस डेली, इस समय दूसरा सबसे बड़ा न्यूज चैनल दैट इज टाइम्स नाउ, रेडियो मिर्ची है कि नहीं आपके यहाँ? सबसे बड़ा वेब प्लेटफॉर्म इंडिया टाइम्स, जिसका पार्ट बाकी सब कुछ है, बहुत कुछ है, गाना.com से लेकर सब कुछ। मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ, इसके अलावा बहुत कुछ है कि फिल्म फेयर है और भी बहुत कुछ है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ मुंबई न्यूज़ मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय वन एंटिटी। अब ये एंटिटी जो है, ये इसका क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, सो यू विल नॉट नो द एग्जैक्ट टर्नओवर एंड रेवेन्यू ऑफ दिस एंटिटी। लेकिन आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट पे जाएंगे और फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखेंगे तो ये 15K करोड़ से ऊपर की ये एंटिटी है, राइट। नंबर 2 एंटिटी आई थिंक यहाँ पर बॉम्बे मार्केट में होना चाहिए शायद ST को। तो अगेन अ बिग कॉर्पोरेट बिरला ग्रुप के साथ था, देन अगेन इट चेंज हैंड्स और अब भारतीय ग्रुप के पास है। अगर आप में से कोई कैलकाटा का है, एनीबॉडी फ्रॉम कैलकाटा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कैलकाटा में लगभग ये सिचुएशन आपको ABP ग्रुप की है, जो कि ABP आनंद पत्रिका न्यूज़पेपर कंट्रोल करता है। सबसे बड़ा वहाँ का इंग्लिश डेली जो है टेलीग्राफ कंट्रोल करता है। ABP आनंदो चैनल कंट्रोल करता है। सब कुछ मतलब ये जो विनर है वो सब कुछ ले जाता है। ये दिल्ली में भी सच है, दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया और ST ये मिलाकर ऑलमोस्ट 80 to 90% मीडिया कंट्रोल करते हैं। सो बिग कॉर्पोरेट्स दे आर रनिंग द शो इन इंडिया।
ये अमेरिका में भी सच है। 5 बिग कॉर्पोरेट्स, दे ओन एवरीथिंग, ऑलमोस्ट 90% ऑफ मुंबई यूएस मीडिया। अभी ये अगर आपका मीडिया है और इसी को आप कंज्यूम करते हैं, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन इसी मीडिया को कंज्यूम करने के लिए, कि हमारी डेस्टिनी है कि हमको इसी से हमको ओपिनियंस मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। और एक दिन का अगर आप न्यूज़ फ्लो देखेंगे तो लगभग 2 से 3 हज़ार न्यूज़ एक दिन में उनके डेस्क पर आती है, जो वो अलग अलग उसको देखते हैं। इसमें से वो चुनते हैं कि हमको इनमें से कौन सी 200 या 300 न्यूज़ दिखानी है। उसमें से फर्स्ट पेज पे कौन सी 10 न्यूज़ होनी है वो फिर वो चुनते हैं। अभी ये सिलेक्शन जो है वो कैसे आपके मीडिया कंजम्पशन को इम्पैक्ट करता है, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। जैसे आज अगर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया परचेज किया है तो उसका कवर प्राइस क्या रहा होगा, कितने रुपए का है आपके यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया? 5। अगर आप किसी पास के प्रिंटिंग प्रेस पे जाएंगे और उनको बोलेंगे कि ये 30 पेज की ये चीज़ है, इसका सिर्फ प्रिंटिंग आप करके आप मुझे दे सकते हो, तो कितने रुपए में दोगे? तो वो बताएगा कि अगर ह्यूज क्वांटम में उसको छापना है देन उसकी प्राइस करीब 25 रुपये होगी। अभी 25 रुपये की चीज़ 5 रुपये में कोई आपके घर पे फेंक के जा रहा है, ऑब्वियसली वहाँ पर भी कोई मार्जिन है, हॉकर का भी एक मार्जिन है। तो हॉकर ने हो सकता है उसको 4 रुपये में लिया होगा, हॉकर ने जिस स्टैंड के एजेंट से लिया होगा हो सकता है उसने 2 रुपये में उठाया होगा। अभी 2 रुपये का एक प्रोडक्ट, सॉरी 25 रुपये जिस प्रोडक्ट की सिर्फ प्रिंटिंग है, उसमें पेपर जोड़ लीजिए, उसके एम्प्लॉय जोड़ लीजिए, वो और थोड़ा ज़्यादा ही होगा। वो आपको वो अपने प्रेस से, प्रिंटिंग प्रेस से निकाल के 2 रुपये में फेंक रहा है, वो फिर कोई उठा रहा है, फिर करते करते आपके पास 5 रुपये में पहुँच रहा है। तो ये जो गैप है फ्रॉम, अभी मैं 25 ही मानता हूँ, टू ये प्रोडक्शन कॉस्ट, ये प्रेस से निकल के जाने का कॉस्ट, ये क्या जादू है, ये क्या मिरेकल है, क्या हाउ दिस हैपेंस? कोई नहीं आइडिया? सिंपल, सोशल साइंस के स्टूडेंट हो, हाँ या दैट्स राइट, इजी है। मैं अभी तक तो यहाँ पर एडवर्टाइजर जो है वो आपके प्रोडक्ट को सब्सिडाइज कर रहा है, वो क्योंकि आप एक्चुअली जो मीडिया बिजनेस, स्पेशली प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया बिजनेस है, वो 2 प्रोडक्ट सेल करता है। एक वो न्यूज़पेपर होता है जिससे उसको 2 रुपये मिल रहे हैं, बाकी का 23 रुपये और उसका प्रॉफिट जो है वो एडवर्टाइजर देता है। एडवर्टाइजर को न्यूज़पेपर क्या बोलता है या चैनल क्या बोलता है, मेरे पास ये 5 लाख लोग हैं, ये हमारी ऑडियंस है, आप अगर अपना ऐड यहाँ पर दोगे तो मैं आपके ऐड को अपने लोगों तक पहुँचा दूँगा और वो प्रोडक्ट वो परचेज करेंगे। दिस इज हाउ मीडिया बिजनेस वर्क्स। जैसे एक चैनल जिसका जनरली लॉन्चिंग कॉस्ट 200 करोड़ है, 1 साल का उसको चलाने का खर्चा करीब 80 करोड़ से 100 करोड़ है, आपको फ्री टू एयर आपके घर पे जाता है। सारे ऑलमोस्ट सारे न्यूज़ चैनल्स आपको फ्री टू एयर आपके घर पे जाते हैं। कुछ चैनल्स हैं जो कि 5 रुपये या 20 रुपये सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बंडल में जो होता है वो फ्री में मिलता है। तो इतना सारा वो खर्चा करके आपको वो आपके घर पर फ्री में डिलीवर कर रहा है, इसलिए क्योंकि एडवर्टाइजर जो है वो उसका बाकी का पैसा आपको दे रहा है, राइट। अभी एडवर्टाइजर, मैं जैसे यहाँ पर एप्पल का आप मान लीजिए या सैमसंग का मैं एडवर्टीजमेंट देना चाहता हूँ अभी, या जैसे मैं एक कार का एडवर्टीजमेंट देना चाहता हूँ जिसकी कॉस्ट 7 लाख या 6 लाख या 5 लाख है, राइट। अभी मुझे कोई मीडिया हाउस अगर ये कहेगा कि मेरे पास महाराष्ट्र के पूरे ट्राइबल बेल्ट में मेरे पास 10 लाख, रूरल इलाके में 10 लाख बीपीएल फैमिलीज हमारा न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो क्या एप्पल, BMW या इवन डव का शैम्पू, क्या वो एडवर्टीजमेंट उस प्रोडक्ट को मिलेगा? तो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप या एबीपी ग्रुप या हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप या लोकमत ग्रुप का काम क्या है कि वो एडवर्टाइजर से ये बताए कि हमारे पास मुंबई में अपर क्लास एंड मिडिल क्लास का अच्छा सा एक
डब्बा है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, आप अपना एडवर्टीजमेंट अगर दोगे तो आपका प्रोडक्ट मैं इन लोगों के बीच पहुंचा दूंगा, राइट। अभी अगर मुझे मुंबई शहर में अपर क्लास एंड मिडिल क्लास ऑडियंस चाहिए, तो मेरी मजबूरी है मीडिया हाउस के तौर पर कि मैं ऐसा कंटेंट तैयार करूं जो कि इस क्लास को सूट करता है, राइट। क्योंकि अगर मेरे पास, जैसे आपने पता नहीं कभी उर्दू का न्यूज़पेपर देखा है कि नहीं देखा है, उर्दू के न्यूज़पेपर्स को जनरली खैनी और बनियान तो इसी तरह के ऐड मिलते हैं, आप उसको देख सकते हो। सीट एम्पेरिकली किसको हिंदी न्यूज़पेपर्स को अगर मारुति कार का ऐड मिल रहा है तो उसको BMW का ऐड नहीं मिल रहा है, क्योंकि BMW का जो परचेज करने वाला आदमी है वो आपको मराठी का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, उसको ऐसा लगता है, मुंबई शहर में तो नहीं पढ़ता है। तो ये जो एक्सक्लूजन है, ये एक्सक्लूजन उसके इनबिल्ट स्ट्रक्चर में है। ये जो गरीबों की न्यूज़, किसानों की न्यूज़ या उनके फेवर की न्यूज़ नहीं दे रहा है, ये उनकी बदमाशी नहीं है, ये उनका इनबिल्ट स्ट्रक्चर है जो उनको अलाउ नहीं करता है कि ट्राइबल इलाके की न्यूज़ या गांव का न्यूज़, यहाँ के भी स्लम्स के न्यूज़। जैसे कोर्ट इलाके में अगर किसी घर में, किसी अपार्टमेंट में आग लगती है और उसमें एक ही आदमी नहीं मरता है, तो हो सकता है उसका कवरेज आपको एक स्लम में आग लग के 2 लोग के मरने की खबर से भी बड़ी खबर हो। और इसको हम लोग कई बार मीडिया में बोलते हैं कि ये बसंत विहार सिंड्रोम है, कि वहाँ पर अगर कुछ हुआ, एक मर्डर होता है, उसको जो कवरेज मिलेगा वो आपको एक झुग्गी बस्ती में होने वाली उसको इम्पोर्टेंस की, उसी इम्पैक्ट की घटना का आपको वो कवरेज नहीं मिलेगा, क्योंकि मीडिया उस कंटेंट को पसंद कर रहा है। मीडिया का जो कंज्यूमर है उसको अपने जैसा कंटेंट चाहिए, अपने जैसे लोगों के बारे में जानना है, उसको फिल्म जानना है, क्रिकेट जानना है, वो उसको लेकर वो ज़्यादा उसकी चिंता है। तो ये असल में एक्सक्लूजन एक तरह से काम कर रहा है मीडिया के स्ट्रक्चर की वजह से। और ये बिग कॉर्पोरेट्स, उनका एक अगर अगले साल की बैलेंस शीट बहुत अच्छी नहीं है और उसका टॉप लाइन बहुत अच्छा नहीं है, तो कंपनी का ओनर बोलेगा उस CEO से कि आपको हम हटा देंगे। ये जैसे इसी तरह से है जैसे कि आपको एक कार के स्टोर में जो उसका जो मैनेजर है वो अगर बहुत सारा बिजनेस नहीं देगा तो उसको हटा दिया जाएगा। उसी तरह से अगर मीडिया बहुत सारा बिजनेस नहीं दे पाए तो उसको वो हटा देगा। अभी इसका मतलब ये भी है कि मीडिया की लैंग्वेज है वो ऐसी होगी जो अपर क्लास को सूट करता है, जो उसको पसंद आता है, उसके हिसाब से उसका कंटेंट बिल्ड होगा। इसका अब एक और मतलब है भारत के लिए और यूएस के लिए भी, और शायद उन तमाम देशों के लिए जिसमें की डाइवर्सिटी है। अभी भारत में जो मुंबई का अपर क्लास है, जो मीडिया को चाहिए, उसका एक काम भी है, उसके एक सोशल बैकग्राउंड भी है। तो इसका मतलब अब ये भी हो गया कि उस सोशल क्लास को कैटर करने, उस क्लास को कैटर करने के लिए एक खास सोशल क्लास को भी कैटर करना है। तो ये संभव नहीं है कि मीडिया उनके रिलीजियस बिलीफ को उस तरह से चोट पहुंचाए कि वो ना पढ़े। तो इसलिए वो जरूरी है कि लगातार हर चैनल में, खास करके हिंदी चैनल्स में, आपको धर्म के प्रोग्राम पहुंचाना आएंगे। आपको देख सकते हैं कि उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वो बाकी का सारा कुछ बिल्ड होगा। और उसमें एक कास्ट बायस भी आप उसको देख सकते हैं। बहुत एम्पेरिकल डाटा है हालांकि, क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं है, इसलिए आपके पास नहीं है इस बात का कि किस कास्ट के कौन सा कास्ट किस क्लास में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक कॉमन सेंस के अप्रोच से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा क्लास है जो मीडिया को चाहिए। अब ये इस मीडिया स्ट्रक्चर को एक कंटेंट प्रोड्यूस करना है जो कि एक खास क्लास को पसंद आए या उनको कैटर करे या उनके सेंसिबिलिटीज को हर्ट न करे, ऐसा कंटेंट उनको क्रिएट करना है। अभी आप अगर उस मीडिया से उम्मीद कर रहे हैं कि वो मीडिया रिजर्वेशन के फेवर में बैलेंस कवरेज करे, तो आप एडिटर से उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना हो। ये उस एडिटर की बदमाशी नहीं है, और इस वजह से उस एडिटर की पोजीशन पे कोई भी आएगा करना उसको वही है, क्योंकि उसको अगर उस काम में रहना है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो अपर क्लास और इस वजह से अपर कास्ट के इंटरेस्ट को सर्व करे। ये मीडिया का
स्ट्रक्चरल कंपल्सन है, स्ट्रक्चरल कंपल्सन टू प्रोड्यूस सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट, ये उसके स्ट्रक्चर के अंदर है। ये बात यहाँ तक आपकी जर्नी जो है मीडिया के बारे में अभी तक जो मैंने बोला, ये जर्नी कॉमन है आपको, जो वेस्ट में है या ईस्ट में है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ ग्लोब, जो भी मतलब आप जहाँ से भी देखें ग्लोब को, तो यहाँ तक की जर्नी आपकी कॉमन है कि मीडिया इज डिस्टाइंड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट जो कि अपर क्लास के इंटरेस्ट का हो, क्योंकि अपर क्लास ऑडियंस चाहिए, क्योंकि वो ऑडियंस होगा तब एडवर्टीजमेंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे हम जब इंडिया टुडे में हमने इंडिया टुडे का उर्दू एडिशन इसी वजह से लॉन्च नहीं किया गया था, क्योंकि पता चला था कि वो उनको नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑडियंस के साथ जो ऐड मिलेगा वो हमारे पर्पस को पूरा नहीं कर रहा है। इस पर हम बोल रहे हैं क्या? इस पर बोल रहे हैं ना, फिर ये शायद इंटरफेयर करेगा। अच्छा, डैश का ही है, ये आसान होता है बीच में एक बैरियर होने से। तो एक तो ये जो टोटल आपको मैंने जो कॉर्पोरेट मीडिया स्ट्रक्चर की वजह से मीडिया का कंटेंट किस तरह का होना ही है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। क्योंकि अगर जैसे अमेरिका का एग्जांपल लें तो वहाँ पर जो सबसे बड़े एडवर्टाइजर्स हैं उसमें वो जो डिफेंस प्रोड्यूसर्स हैं वो सबसे बड़े एडवर्टाइजर हैं, तो उनका ऐड पाने के लिए अमेरिकन मीडिया को इराक वॉर के लिए कैंपेन करना ही पड़ेगा कि वो वहाँ पर WMD है और उसको मार के बर्बाद कर देना चाहिए। ये उसके स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये उसमें बहुत ज़्यादा चाह भी लें तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक अभी जो मैंने बताया, मुझे लगता है कि इतना तो हम सारे लोग जनरली जानते हैं, हम लोग एक पेज पे हैं कि ये ऐसा है। कोई अगर यहाँ पर डाउट है तो एक बार हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या ऐसा नहीं है, ऐसा अगर किसी को लगता है बात कर सकते हैं। सो क्वेश्चंस और कमेंट, कुछ ऐसा जो लगता है कि ठीक है, फाइन। तो अभी हम इसके बाद दूसरे पार्ट में आ रहे हैं, और ये भी खास करके सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि इंडियन मीडिया का सोशल कंपोजिशन क्या है। आपके यहाँ से पिछले बैच में एक स्टडी अतुल आनंद ने की थी झारखंड और बिहार के मीडिया पर, पीजी के स्टूडेंट थे, MA आई थिंक सोशोलॉजी और मीडिया, फाइन। उन्होंने ये जब वो झारखंड और पटना का मीडिया उन्होंने स्टडी करने के लिए एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट करना शुरू किया, तो उनको ये पता चला कि झारखंड में जहाँ पर ऑलमोस्ट 27% पॉपुलेशन इज ट्राइबल, और OBC का क्योंकि सेंसस नहीं होता था आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 80 to 90% वो स्टेट SC ST और OBC से बना हुआ स्टेट है। जब वो डाटा कलेक्ट करने के लिए यहाँ से रांची जाते हैं तब उनको पता चलता है कि रांची शहर से प्रोड्यूस होने वाला एक भी न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है जिसमें कि टॉप डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में शेड्यूल्ड ट्राइब का एक भी आदमी हो, राइट। और ये ऐसा ही डाटा उनको पटना में भी मिला कि पटना में भी जो इनफैक्ट झारखंड पे तो उनको स्टडी है कि कोई रिपोर्टर भी वहाँ पर ट्राइबल नहीं है, तो ये डाटा उनको कलेक्ट हुआ। अभी ये डाटा भारत में पहली बार कलेक्ट करने के बारे में किसने सोचा होगा, आप अंदाज़ा लगाइए, बल्कि मैं आपको मदद कर ही देता हूँ कि अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर के इंडिया ब्यूरो चीफ, अगर मुझे नाम ठीक याद है तो मिस्टर केनेथ कूपर, वो सर्च कीजिएगा गूगल पे मिलेगा। उन्होंने पहली बार उनके अंदर में एक इंक्वायरी आई कि दिल्ली का जो मीडिया है, नेशनल मीडिया है, उसमें शेड्यूल कास्ट का कोई जर्नलिस्ट है क्या। अभी उसको इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि उस समय कांसीराम साहब ने, ये जो आम आदमी पार्टी में आजकल आशुतोष हैं, वो उनके घर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की थी, मारपीट हुई थी। मारपीट क्या हुई थी, उन्होंने उनको मार के निकाल दिया था अपने घर से, जो ट्रेस पासिंग कर रहे थे, इसलिए उन पर कोई केस भी नहीं हुआ था, वो एक वैलिड सा मामला था। इसके बाद पूरी मीडिया ने कांसीराम साहब के खिलाफ एक कैंपेन चलाया था, पूरे देश की मीडिया ने। केनेथ कूपर क्योंकि देश के नहीं थे और ये चीज़ को वो नॉर्मल तरीके से नहीं ले पाए थे, नॉर्मलाइज नहीं हुए थे, उन्होंने कोशिश की कि क्या कोई दलित जर्नलिस्ट है दिल्ली में जिससे कि मैं बात करके कोई कॉन्ट्रेरियन व्यू है क्या, ये जानने की उन्होंने कोशिश की।
तो उन्होंने अपने सारे जर्नलिस्ट दोस्तों को प्रेस क्लब में, फॉरेन प्रेस क्लब में, कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में भी उन्होंने पूछा कि नो, तो टाइटल वगैरह के आधार पर उन्होंने कुछ को एक्सक्लूड किया कि ये तो हो ही नहीं सकते हैं। इसके बाद उन्होंने फ़ोन करके पूछना शुरू किया कि आप, ऐसे नहीं पूछा कि क्या आप दलित हैं, पूछा कि क्या आप किसी दलित जर्नलिस्ट को जानते हैं। तो सारा कुछ करने के बाद, कुछ महीने की स्टडी के बाद उन्होंने एक आर्टिकल लिखा पायनियर में, इन सर्च ऑफ अ दलित जर्नलिस्ट, और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि दिल्ली के मीडिया में एक भी दलित जर्नलिस्ट नहीं है। और ये स्टडी हुई 1996 में। अगर अमेरिका के उस ब्लैक जर्नलिस्ट के मन में ये क्वेश्चन नहीं आता तो आज भी शायद अतुल आनंद ये स्टडी नहीं कर रहे होते कि कोई दलित जर्नलिस्ट है कि नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत एक मान के चलते हैं कि क्या यहाँ पर भी हम कास्ट ढूंढें, क्या क्रिकेट में भी कास्ट ढूंढा जाए, क्या फिल्म में भी कास्ट ढूंढा जाए। तो इस डाइवर्सिटी की शायद हम इसकी ये जानना भी, आप जिस जो नॉलेज की यहाँ की ट्रेजेक्ट्री है उसमें ये कॉमन नहीं है कि आप ये कैसे जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्रिकेट टीम में कोई दलित है कि नहीं है। कितना एब्सर्ड लग रहा है, जबकि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट पिछले कई साल से अपने यहाँ कोई क्लब की टीम वहाँ नहीं बन सकती है जो क्लब का नेशनल टूर्नामेंट खेलता है जिसमें कि 11 में 6 प्लेयर नॉन वाइट ना हो। वहाँ की कोई स्टेट अपनी टीम नहीं बना सकता है जिसमें कि 5 प्लेयर नॉन वाइट ना हो। और ये इसको आप अब इंडिया में जरा आप इसको लाइए, और अगर आप कोई ये डिमांड भी करें कि भाई क्रिकेट टीम में भी पूरे देश जैसा दिखना चाहिए, सारे कम्युनिटीज से टैलेंट आना चाहिए, टैलेंट पूल बड़ा होगा, इतना सा कॉमन सा एक आप आर्गुमेंट रखेंगे तो आपको, आप कभी बस में या ट्रेन में ये बोल के देखिए तो आपको लोग घूम के देखेंगे कि इतना एब्सर्ड बात कर रहा है। एनीवेज, तो केनेथ कूपर ने जब जानने की कोशिश की तो उनको सब कुछ करने के बाद फिर उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में भी एक आर्टिकल इस पर लिखा, बाद में रिसर्च पेपर भी उन्होंने किया, बाद में वो एकेडमिक्स में चले गए केनेथ कूपर। तो केनेथ कूपर का जो 1996 का स्टडी है वो ये बता रहा है कि दिल्ली के नेशनल मीडिया में जो सारा कुछ, सब कुछ, सारी लिस्ट उन्होंने लिखा है, प्रेस क्लब के मेंबर्स की लिस्ट निकाली, बहुत थॉरो स्टडी है, करके उन्होंने पता किया कि एक भी नहीं। अभी इसके बाद इसको लेकर मीडिया ने, इसको इंडियन मीडिया ने कैसे रिस्पॉन्स किया कि कुछ नहीं हुआ है, मतलब देखेंगे ही नहीं, इस पर बात ही नहीं करेंगे, ये वॉशिंगटन पोस्ट में छप रहा है, कोई बात नहीं, 1-2 जगह छप गया है, बात हो गई। तो इस पर इंडियन मीडिया ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसको बिल्कुल वो अननोटिस जाने दिया। अब इसके ठीक 10 साल बाद एक और चीज़ होती है, 2006 आता है। 2006 में अर्जुन सिंह ने हायर एजुकेशन में OBC रिजर्वेशन उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। इसके खिलाफ देश भर में छोटा मोटा एजिटेशन हुआ, और कभी भी उस एजिटेशन में किसी भी समय में टोटल मोबिलाइजेशन 500 से 700 से ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो जैसे कि पूरे देश में और कुछ नहीं हो रहा है, 10 दिन तक मीडिया ने लगभग उसको फर्स्ट हेडलाइन बनाया, जैसे कि स्टूडेंट पूरे देश में बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है और OBC रिजर्वेशन का विरोध कर रहा है। अभी इसने फिर एक ग्रुप ऑफ जो रिसर्चर्स हैं उनके अंदर फिर से ये इंक्वायरी, उनके ये जानने की उनकी इच्छा हुई कि ये क्यों है। तो योगेंद्र यादव, अनिल चमड़िया और जितेंद्र कुमार, इन तीनों ने एक टीम बनाकर दिल्ली में 38 मीडिया हाउसेज को, जो चैनल्स और न्यूज़पेपर्स हैं, उनको एक क्वेश्चनर भेजा। सिंपल क्वेश्चनर था कि आपके इस मीडिया हाउस में 10 डिसीजन मेकिंग पोस्ट क्या है, लिस्ट दें, और उसमें जो आदमी काम करता है उसका रिलीजन का क्या है, जेंडर क्या है और कास्ट ग्रुप क्या है, इतना आप बता दीजिए। राइट, उस समय तक लोग भूल चुके थे, सारा मीडिया भूल चुका था कि 10 साल पहले ऐसी एक स्टडी हुई है। तो शायद उन्होंने एक गलती कर दी कि उन्होंने 35 न्यूज़पेपर्स ने और चैनल्स ने इस क्वेश्चनर का जवाब भेज दिया। जवाब जब भेज दिया तो 2006 में फिर ये पता चलता है कि दिल्ली मीडिया में टॉप डिसीजन मेकिंग 10 पोस्ट्स में मिलाकर 350 के आसपास का सैंपल साइज था। फिर एक भी दलित नहीं है, ट्राइबल नहीं है, OBC 4% है। अभी आप जो सोशल ग्रुप इंडिया में मेल डोमिनेटेड है, ऑब्वियसली ऑलमोस्ट, आई थिंक जो था डाटा आप चेक कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ये भी मैं ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ जो कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको नहीं पता होगी, बहुत गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा, योगेंद्र यादव, अनिल चमड़िया एंड मीडिया, इतने वर्ष से पता चलेगा। मीडिया कास्ट सर्वे भी करेंगे तो ये पता चल, ये आपको निकल के आएगा, पहले नंबर पे शायद गूगल पे आ जाए। तो
उसमें उन्होंने फिर एक कंक्लूजन टोटल जो डाटा था उसको एनालाइज करके बताया कि इंडिया में जो सोशल ग्रोथ ऑलमोस्ट 7.5% है। 7.5% इसलिए कि उन्होंने हिंदू अपर कास्ट मेल को एक ग्रुप बनाया। हिंदू अपर कास्ट मेल जो ऑलमोस्ट 7 to 7.5% इंडियन पॉपुलेशन का होगा। ये भी एक थोड़ा सा बहुत कॉन्क्रीट डाटा नहीं है। 31 के सेंसस को उन्होंने मान लिया कि ऐसे ही लगभग सोसाइटी का स्ट्रक्चर होगा। उसके बेसिस पर उन्होंने कहा कि 76% ऑफ टॉप मीडिया पोजिशंस आर हेल्ड बाय दिस स्मॉल सोशल ग्रुप। तो दूसरी बार आपको फिर से लगभग वही डाटा आपको फिर से आया जो 1996 में था। इसके बाद कई स्टेट में भी इसको लेकर स्टेट्स के लेवल पर कुछ रिसर्चर्स ने इसको जानने की कोशिश की। जैसे आंध्रा मीडिया पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्रोफेसर नागराजू, उन्होंने भी स्टडी की। एक स्टडी पटना में हुई, 2 स्टडी पटना में हुई और बहुत सारी स्टडीज से आपको यही पता चला। जो दिल्ली का जो स्ट्रक्चर था 1996 की स्टडी थी, 2006 की स्टडी थी, वो फिर से वो बार बार वही चीज़ अंडरलाइन हो रही थी। एक और रिसर्चर प्रोफेसर रॉबिन जेफरी ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी से हैं, उन्होंने 2011 में फिर जानने की कोशिश की कि क्या दिल्ली में जो सारे न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें क्या एक भी दलित एंकर है। फिर उनको पता चला कि नहीं, कोई नहीं। तो अब ये आपको एक तो मीडिया का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की वजह से खास सोशल ग्रुप्स का एक्सक्लूजन, उसके बाद एक खास सोशल ग्रुप का एक बहुत बड़े पैमाने पर जो हेजेमनी है, ये मिलकर आपका मीडिया स्ट्रक्चर बनाता है। अभी एक आर्गुमेंट आता है कि क्या ये ज़रूरी है कि अपर कास्ट का जर्नलिस्ट होगा, हिंदू अपर कास्ट मेल जर्नलिस्ट होगा, तो वो हिंदू अपर कास्ट मेल के लिए ही कंटेंट प्रोड्यूस करेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश अमेरिका में 1967-68 में हुई थी, जब 1967 के आसपास वहाँ पर रेशियल दंगे शुरू हुए थे। बहुत बड़े पैमाने पर डेट्रॉइट में हुआ था, शिकागो में हुआ था, बहुत सारे शहरों में एक बहुत बड़े पैमाने पर एक अनरेस्ट पैदा हुआ। वो फैक्ट्री से शुरू हुआ, फिर ब्लैक गेटोज में गया, फिर वो बहुत उसी समय आपको मेरे ख्याल से वो पीरियड होगा जब ब्लैक पैंथर बन रहा होगा, उसी समय वो सारा कुछ हो रहा था। ये जब सारा कुछ हो गया, जब वहाँ पर चीज़ें थोड़ी ठंडी हुई, बहुत ब्रूटल तरीके से उसका रिप्रेशन भी हुआ, उसका जब ठंडा हो गया तो फेडरल गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया। मिस्टर केरनर उसके चेयरपर्सन थे। केरनर कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दी कि इस वजह से रेशियल राइट्स हुए हैं और इसको अगर रोकना है कि ये करना चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट में एक मेजर पोर्शन, आई थिंक 0.40 के आसपास होगा शायद था वो। केरनर कमीशन रिपोर्ट इज ऑल्सो देयर, पूरे PDF अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। केरनर कमीशन रिपोर्ट या आपको 1968 पर मिल जाएगा वो। तो उसने ये बताया कि ये जो ब्लैक अनरेस्ट है उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो ब्लैक्स हैं और इवन हिस्पैनिक्स हैं, उनके ग्रीवांसेस को बाकी लोगों तक, देश तक पहुंचाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वाइट डोमिनेटेड जो मीडिया है वहाँ का, वो उस पर ही भरोसा नहीं करते हैं। और एक तो वो कवरेज भी नहीं देता है, जो कवरेज देता है वो ब्लैक्स वहाँ पर मीडिया में तभी आता है जब कोई ब्लैक कोई क्राइम कर देता है, एज इफ सारे ब्लैक्स ही क्राइम कर रहे हैं। और इस वजह से लोगों को भरोसा नहीं है। और वहाँ पर 1968 में ये उन्होंने रिपोर्ट दे दी केरनर कमीशन ने। केरनर कमीशन की रिपोर्ट के बाद 10 साल तक वहाँ के मीडिया में इसको लेकर डिबेट चली। भारत की तरह नहीं था कि अब कुछ नहीं हुआ है, 96 में कुछ नहीं हुआ है, 2006 में कोई रिपोर्ट नहीं आई है, रॉबिन जेफरी ने कुछ नहीं बोला है, तो लानन ने कुछ नहीं बोला है, मतलब ये सब बेकार है टाइप नहीं था। वहाँ पर उन्होंने उसको बहुत सीरियसली उसका कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने उस पर बातचीत करनी शुरू की। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर्स ASNE ने 1978 में ये अपने प्लेनरी सेशन में ये डिसाइड किया कि अमेरिकन मीडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो अमेरिका का जो सोशल स्ट्रक्चर है वैसा हमको बनाना है। दिस इज़ देयर डाइवर्सिटी गोल। और इसके लिए उन्होंने पहला काम ये किया कि
1978 ऑनवर्ड्स वहाँ का हर न्यूज़पेपर अपनी ईयरली सोशल ऑडिट पब्लिक करेगा। कितने ब्लैक्स हैं, कितने वाइट्स हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने हिस्पैनिक्स हैं, कितने एशियंस हैं, इसका वो करता है। आज इस साल भी किया है, वो अभी तक जारी है। हर साल आप देखेंगे ASNE डाइवर्सिटी रिपोर्ट अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि वो डाइवर्सिटी अपने जो उनके गोल्स हैं उसके आसपास वो पहुंचने के लिए पहला काम ये करते हैं कि उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, माना कि प्रॉब्लम है। भारत में उसका देखिए बहुत एकदम अलग तरह से लोगों ने बिहेव किया है। जैसे ये हुआ तो चंदन मित्रा और मृणाल पांडे और सारे जो एडिटर्स उस समय के थे, उन्होंने कहा कि मीडिया प्रोफेशनल्स की कास्ट कैसे पूछ सकते हैं, वो तो जो प्रोफेशनल अच्छा प्रोफेशनल है उसको रखेंगे। लेकिन अमेरिकन न्यूज़पेपर्स ने डाइवर्सिटी अपना गोल सेट किया और हर साल अपनी डाइवर्सिटी रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक करना शुरू किया। ऑलमोस्ट 900 न्यूज़पेपर्स इन US हर साल, वो कोई एक साल भी गैप नहीं है जबकि उन्होंने अपनी डाइवर्सिटी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की। ऑडिटिंग पब्लिक है, वो उसको वेबसाइट पर डालते हैं कि हमारे यहाँ कम है, लगभग इस अंदाज में कि हमें शर्म आ रही है कि हमारे पास उतने ब्लैक्स नहीं जितने कि ब्लैक पॉपुलेशन है। अभी तक वो उस गोल को पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते हैं। जैसे हम ये नहीं मानते हैं ना कि फिल्मों में कोई हिंदी फिल्मों में कोई दलित एक्टर या एक्ट्रेसेस क्यों नहीं दिखता है, जनरली नहीं दिखता है, इसको हम प्रॉब्लम ही नहीं मान रहे हैं। अमेरिका में हॉलीवुड हर साल हॉलीवुड डाइवर्सिटी रिपोर्ट जारी करता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको करती है। 3 रिपोर्ट शायद आ चुकी है, दूसरी रिपोर्ट तो मैंने भी देखी है। इसमें है, किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा, चाहिए तो दे क्या दूंगा। हॉलीवुड डाइवर्सिटी रिपोर्ट अभी आप सर्च करो, सबसे ऊपर वो निकल के आएगा। वो क्या क्या जानने की कोशिश करते हैं, उनका इंक्वायरी क्या क्या है। फिल्मों में कितने कितने जो टॉप फिल्में हैं उसमें कितने एक्टर्स ने काम किया, उसमें ब्लैक्स कितने, हिस्पैनिक्स कितने, एशियंस कितने। जो फिल्म राइटर्स हैं उन राइटर्स में कितने अलग अलग जो रेशियल ग्रुप्स हैं या जो ग्रुप्स हैं उसके कितने कितने लोग हैं। फिल्म टेलीविज़न शोज़ में किस सोशल ग्रुप के कितने वहाँ पर लोग हैं, रेशियल ग्रुप्स के कितने लोग हैं। इवन ऑस्कर में कौन जीत रहा है और वो जो जीत रहा है उसका सोशल ग्रुप क्या है, इस लेवल पर वो इंक्वायरी कर रहे हैं अपने सोसाइटी को। इस लेवल पर वो इतने कड़ी स्क्रूटनी में डाल रहे हैं क्योंकि जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। वो हमारी तरह आंख बंद करके इस प्रॉब्लम को ग्लॉस ओवर नहीं कर दे रहे हैं कि कोई इशू ही नहीं है। एक लेवल पर शायद वो उनकी डेमोक्रेसी अब पुरानी हो गई है और वो इन सवालों से डरते नहीं। भारत में जैसे कास्ट सेंसस से जो डर है ये बहुत अजीब तरह का डर है। बहुत डरते हैं कि कास्ट का पता चल जाएगा तो अगर 3% ब्राह्मण पता चल गया तो 3% ब्राह्मण के बाद पता चलेगा कि 60% जजेज ब्राह्मण हैं तो फिर क्या हो जाएगा। मतलब ये बहुत इस तरह या टॉप ब्यूरोक्रेट्स में 88 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज हैं, अगर ये पता चल गया कि 56 ब्राह्मण है, इधर 3.5% पॉपुलेशन है तो क्या होगा। मतलब वो इस सच को छिपाना चाहते हैं जो लगभग हमें मालूम है, लेकिन डाटा के लेवल पर आ जाएगा। अगर ये कास्ट सेंसस हो गया होता तो ये आज डाटा के लेवल पर होता कि कितने लोगों के पास कार है और वो कार किन सोशल ग्रुप्स के पास है, इस लेवल का डाटा हमारे पास होता। क्योंकि सेंसस में आप देखेंगे कितने पक्के घर, कच्चे घर, करीब 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसके पास ज़मीन है, किसके मतलब इतने पानी वो कहाँ से लेता है, इस तरह सिलेंडर है कि नहीं, इतने तरह के डाटा वो कलेक्ट करता है कि आपको बहुत पक्के तरीके से आप कह सकते थे कि ये जो सोशल ग्रुप है इसको आज़ादी का लाभ नहीं मिला है, इसको मिला है, इसको नहीं मिला है तो इसको हम लाभ कैसे पहुँचाएँ। इस लेवल पर हम बात कर सकते थे। अभी आपके पास हर स्टेट को ओबीसी का फंड मिलता है। कितना मिलता है? ओबीसी की पॉपुलेशन तो मालूम नहीं, कैसे देंगे। ओबीसी किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी में कम है, कहीं बहुत ही कम है। अभी इसका फॉर्मूला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निकाला है, टोटल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में दे दो। बगैर डाटा के काम करने का ये नुकसान है कि किसी स्टेट में हो सकता है कि ओबीसी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन कम है, लेकिन उसको कम नहीं दे सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला ये बनाया है, क्योंकि डाटा नहीं है कि टोटल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में दे दो। तो इसी तरह से जब आप मीडिया के अंदर डाइवर्सिटी नहीं होने को प्रॉब्लम नहीं मान रहे हैं तो दरअसल आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस भी नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते हैं और आप इसी तरह से चीज़ों को चलते रहने देंगे। अभी मेरा दूसरा पॉइंट लगभग जो था वो मैंने कंप्लीट किया कि
सोशल कंपोजिशन और इससे रिलेटेड जो ग्लोबल डिबेट्स वगैरह हैं वो क्या है, भारत की सिचुएशन क्या है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब ये दो चीज़ें अगर है, कॉर्पोरेट होने की वजह से बहुत सारा पैसा चाहिए, बैलेंस शीट इज इम्पॉर्टेंट, और बैलेंस शीट अगर चाहिए तो उसको एडवर्टीजमेंट से ही पूरा होना है, और एडवर्टीजमेंट तभी मिलना है जबकि आपके पास एक खास तरह का ऑडियंस हो, और वो खास तरह का ऑडियंस एक खास तरह के सोशल ग्रुप्स को बिलोंग करता है, तो उस ऑडियंस के मतलब का कंटेंट आपको प्रोड्यूस करना है, और जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं इस कंटेंट को उनका सोशल ग्रुप्स भी आपने देख लिया। ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से ये डिबेट्स जो सोशियोलॉजी या मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है कि ये दोनों डिबेट इस कंक्लूजन पे पहुंच चुकी है, इसमें कोई फर्दर डिबेट्स नहीं है। ये दोनों इशू एक तरह से आप फ्रीज हो चुका है, ऑसिफाई हो गया है कि ये दोनों चीज़ें तो हैं, सबको मालूम है, कोई इस पर यहाँ तक डिबेट नहीं है। तीसरी चीज़ जिस पर थोड़ा बहुत डिबेट है, लेकिन वो भी जो डाटा है उसको वो प्रूव करता है कि ऐसा ही है, वो कि ये चीज़ क्या प्रोड्यूस करती है, वो जो प्रोड्यूस कर रही है वो किसी खास ग्रुप्स के फेवर में है या नहीं है। इसको अगर आपको देखना हो तो अभी आप थोड़ा पुराना न्यूज़पेपर्स अगर आपको देखना हो 2006 में जब वो ओबीसी रिजर्वेशन वाली डिबेट थी, तो आप देख सकते हैं किसी भी एक न्यूज़पेपर का आप एडिट का पन्ना खोल लीजिए, एडिट पेज खोल लीजिए, और आप देख लीजिए कि उस टॉपिक पर किन्होंने आर्टिकल लिखे और वो आर्टिकल क्या लिखे गए, क्या डिबेट्स चले। वो जो आप अगर कंटेंट एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो फिर ये जो न्यूज़ रूम है वो एक खास तरह का कंटेंट वो दे रहा है। जैसे कि मैं आपको एक डाटा देता हूँ, कास्ट सेंसस को लेकर 10th एंड 11th जून 2011 में पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी, लोकसभा में 2 दिन की पूरी डिबेट थी। 2 दिन की पूरी डिबेट में के बाद ये एक कंसेंसस बना सारी पॉलिटिकल पार्टीज में कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। इसमें बीजेपी से गोपीनाथ मुंडे ने बोला था, समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव ने बोला था, जेडीयू से शरद यादव ने बोला था, कांग्रेस से संदीप दीक्षित ने बोला था, सारे लोगों ने बोला था। लास्ट में मनमोहन सिंह ने अनाउंस किया कि कास्ट सेंसस होगा। पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इस बात पर राजी हो गया था कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। 2010 की डिबेट थी, 2011 डेट आप फिर से मुझसे ले लीजिएगा, आई थिंक इट्स 10th एंड 11th मई 2010। तो इस डिबेट 2 दिन की डिबेट थी। इसके बाद जिस दिन डिबेट ख़त्म हुई उसके बाद वाले दिन दिल्ली में लार्जेस्ट सेलिंग 13 इंग्लिश एंड हिंदी डेलीज ने एडिटोरियल लिखा कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। पूरा पॉलिटिकल क्लास इस बात पर जब सहमत था और देश में कंसेंसस बना पार्लियामेंट के अंदर कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए, तब मीडिया में एक दूसरा कंसेंसस बन गया कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे देश में जातिवाद बढ़ेगा वगैरह वगैरह, सारे उस तरह के आर्गूमेंट्स आए कि वो धीरे धीरे जातिवाद खत्म हो रहा है, लेकिन फिर सब चीज़ें बढ़ जाएंगी, जातिवाद फिर फैल जाएगा, फिर वो ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। मतलब बहुत ही अजीब तरह का आर्गूमेंट था। वो सारे एडिटोरियल्स अवेलेबल हैं इस समय, बुक में भी अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएगा। तो अभी ये कैसे होता है कि एक इन इशूज़ पर रिजर्वेशन हो, एट्रोसिटी हो, कास्ट सेंसस हो, इन सारे इशूज़ पर पूरा मीडिया का एक कंसेंसस होता है कि वो हिंदू अपर कास्ट के फेवर में खड़ा होगा। और ये दसियों बार हो चुका है, इसकी स्टडीज़ भी हो चुकी है। जैसे नॉन अलाइंड मीडिया नेटवर्क ने एक स्टडी की थी 1991 में, जब एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट था, कि क्या मीडिया ने किया, किस तरह कवरेज किया और किन लोगों को छापा, कौन छापने वाले थे। तो ये तीसरी जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये जो मीडिया है ये एक खास तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी हम सारे लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये अगर अभी आप इसमें हिंदू कास्ट अपर कास्ट डोमिनेशन जो है वो सिर्फ जैसे टेलीविज़न अगर है तो एंकर्स के लेवल पर नहीं है। किसी भी इशू पर अगर आप डिबेट हो तो आप देख सकते हैं कि उनमें किसको वो बुलाते हैं पैनल के तौर पर, वहाँ भी एक पैटर्न है। 1-2 आपको दलित स्कॉलर्स वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन दलित स्कॉलर्स किस टॉपिक बोलने के लिए आते हैं? कोई एट्रोसिटी होगी या कास्ट एज ए कैटेगरी जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तभी वो किसी दलित स्कॉलर को बुलाते हैं। अभी दिल्ली शहर में JNU में अफ्रीकन स्टडीज़ जो है उसके चेयरपर्सन SN मालाकार हैं, OBC हैं, माली कम्युनिटी से हैं। वो
अफ्रीका के इस समय दिल्ली में सबसे बड़े स्कॉलर्स में गिने जाते हैं, खास करके साउथ अफ्रीका और सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका पर उनसे ज़्यादा काम किसी का नहीं है इन टर्म्स ऑफ पेपर्स एंड बुक्स एंड ऑल दैट, राइट। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री अगर अफ्रीका जाएगा या अफ्रीका का प्रधानमंत्री भारत आएगा, अफ्रीका इंडो अफ्रीकन रिलेशन पर जब कोई पैनल डिस्कशन होना है तब एसएन मालाकार नहीं बुलाए जाएंगे। एसएन मालाकार एक पैनलिस्ट के तौर पर सिर्फ तभी बुलाए जाएंगे जब कास्ट का इशू सामने आएगा। अभी विवेक कुमार की, प्रोफेसर विवेक कुमार जेएनयू में सोशल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, उनकी एक्सपर्टीज डायस्पोरा है, डायस्पोरा पर उन्होंने सारा काम किया, डायस्पोरा पढ़ाते हैं। लेकिन डायस्पोरा पर से रिलेटेड किसी भी डिबेट में आज तक इतने साल में विवेक कुमार को नहीं बुलाया गया। अभी भारत के सबसे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट में जो पद्मश्री पद्म भूषण वगैरह क्या क्या मिला है पता नहीं, इस समय डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद। जगदीश प्रसाद को कभी भी कार्डियोलॉजी या हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर नहीं बुलाया जाएगा। ये सारा फिक्स है कि आप अब डॉक्टर कौशल पवार वो संस्कृत की स्कॉलर है, संस्कृत में पीएचडी की है, संस्कृत पढ़ाती है, लेकिन संस्कृत या धर्म से रिलेटेड किसी मनुस्मृति पर उनका ये पीएचडी का टॉपिक भी ऐसे किसी वो संस्कृत के किसी रिलीजियस टेक्स्ट पे ही है। लेकिन ऐसे किसी टॉपिक पर जब रिलीजन एज ए कैटेगरी डिबेट में हो, संस्कृत एज ए लैंग्वेज डिबेट में हो, कौशल पवार को आज तक नहीं बुलाया गया है, आगे भी नहीं बुलाया जाएगा। मोटे तौर पर जो पैटर्न है उससे लगता है। तो आप असल में रिड्यूस कर रहे हैं, उनको फिक्स कर रहे हैं कि आप अगर दलित स्कॉलर आप इस टॉपिक पर बोलेंगे, आप जो सेकुलर किस्म के टॉपिक है उस पर आप नहीं बोल सकते हैं, आपको नहीं बुलाया जाएगा। ये भी एक पैटर्न है जो कि आपको, जब हिंदू अपर कास्ट डोमिनेशन की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ न्यूज़ रूम में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ और एडिटर्स की बात नहीं है। ये उन्होंने जब वो किसी टॉपिक पर एडिट पेज का आर्टिकल लिखवाना है, इसे लेके सब जगह वो डोमिनेशन आपको दिखता है। और ये प्रोड्यूस कर रहा है कंटेंट जो इस देश के ऑलमोस्ट 85% पॉपुलेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ है। और उसमें अगर आप अपर कास्ट वुमेन को इंक्लूड कर दें तो वो लगभग 93% पॉपुलेशन न सिर्फ मीडिया में बहुत कम है, बल्कि उनके हिसाब से कंटेंट भी नहीं बन रहा है। अब अगर जैसे अभी देखिए, आपको एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि अभी तक यूपी में ऐसा कभी कोई ओपिनियन पोल नहीं आया है जिसमें बीएसपी को बढ़त दिखाई गई है। 4 बार बीएसपी की सरकार बनी है, ऐसा कोई ओपिनियन पोल नहीं आया है जिसमें कि लालू यादव जीतते हुए दिखाए गए हों, जबकि बहुत अच्छी मेजोरिटी उनकी सरकारें बनी। 4 बार वो सरकार में रहे, 3 बार अपनी सरकार बनी है, इस बार साथ में सरकार है। लेकिन कभी भी ऐसा ओपिनियन पोल नहीं आ सकता है जिसमें कि इनको जीतता हुआ दिखाया जाएगा, ऐसा कभी ओपिनियन पोल नहीं होता है। अब आप कह सकते हैं गलती हो जाती है, खास तरह से गलती क्यों हो जाती है, हर बार वैसी गलती क्यों होती है? आप ये क्यों नहीं देख पाए कि जैसे 11 ओपिनियन पोल्स हुए थे इस बार बिहार इलेक्शन से पहले, किसी को भी क्यों नहीं दिख रहा था कि इस बार सरकार कैसी बनने वाली है? कैसे क्यों ऐसा दिख रहा था सबको कि बीजेपी बिहार में मेजोरिटी में आने वाली है? और दरअसल ये जो ओपिनियन पोल्स हैं ये सिर्फ ओपिनियन पोल्स नहीं है, ये ओपिनियन मेकिंग पोल्स भी हैं। जब आप एक पार्टी को ओपिनियन पोल में आगे दिखाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट उसका आता है। लोगों को लगता है कि अपना वोट क्यों बर्बाद करने, ये एमएलए बन रहा है, इसको मैं अपोजिशन पार्टी वाला क्यों दे दूँ, हमारे इलाके में दिक्कत होगी। फिर वो रिसोर्स जो आने लगता है, सेठ लोग पैसा भी जीतती हुई पार्टी को लगाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जब ओपिनियन पोल में कोई जीतता हुआ जब दिखता है तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स उसके साथ काम करने लगते हैं। तो इसको आप ओपिनियन मेकिंग पोल्स भी कर सकते हैं कि दीज आर ओपिनियन मेकिंग पोल्स। और ये चुनाव को के बारे में सिर्फ बताने के लिए नहीं होता है, बल्कि चुनाव के बारे में ओपिनियन मेकिंग के लिए भी पोल का इस्तेमाल होता है। तो ये लगातार होने वाली गलतियां मैं आपको बता रही है कि मीडिया का जो खास तरह का स्ट्रक्चर है वो खास तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है। और आप 50 तरीके से देख सकते हैं। सिर्फ आप किसी एक कैरेक्टर को ले लीजिए इंडियन पॉलिटिक्स के, जैसे लालू को ले लीजिए। लालू को लेकर जो सारा कवरेज है आप देख लीजिए कि वो आदमी कैसा है, और जैसे उसके करप्शन का क्वांटम देख लीजिए, जैसे फॉरवर्ड स्कैम का क्वांटम, इसके मुकाबले आप 2G स्कैम का क्वांटम देख लीजिए, आपको ऑलमोस्ट 10 टाइम बड़ा क्वांटम है। लेकिन 2G स्कैम के कल्प्रिट्स कौन है आपको शायद ढूंढने को नहीं मिलेगा। उससे बड़ा स्कैम कोल स्कैम था। कोल स्कैम का आप इस हॉल में मौजूद किसी भी आदमी को क्या एक भी कल्प्रिट का नाम याद है? कोल स्कैम नहीं, एक आदमी को पता है कि पारिक एनीवेज। और सो ये मीडिया ने हमको ऐसा बना दिया है
हम जैसे मैंने अभी कहीं पर लिखा भी था कि लालू के का पहली बेटी पैदा होने से पहले ज़्यादा बच्चे पैदा हो चुके थे, 8 जिंदा रहे, लेकिन ज़्यादा बच्चा पैदा करने का कोई कार्टून नरसिम्हा राव ने नहीं बनाया। ज़्यादा बच्चा कौन पैदा करता है? लालू यादव पैदा करता है। मतलब आप और नहीं, हम सब लोग, आप बताइए ना, आप में से कितने लोगों को पता था कि एनटीआर के कितने बच्चे थे? नहीं पता ना, 14 बच्चे थे। लालू का पता है, एनटीआर का नहीं पता है। ये हम लोग असल में इस पूरे प्रोसेस को हम बोलें कि मीडिया का मामला है, ऐसा नहीं है। हम उसके अंदर हैं, उस पूरे प्रोसेस के अंदर है, पार्ट है। वो विक्टिम के तौर पे हैं, पार्टिसिपेंट के तौर पे हैं, हम सबका इससे लेना देना है, हम सबकी ओपिनियन उससे बनती है। हम सब अपने मीडिया, दरअसल एक चीज़ और है कि मीडिया की जो एक थ्योरी है कि मीडिया हो सकता है कि एक्स टॉपिक पर आपकी क्या ओपिनियन हो ये फिक्स नहीं कर दे, लेकिन आपको किस टॉपिक पे सोचना है, किस टॉपिक के बारे में आपको बात करनी है, तो अपने दोस्तों के बीच किस बारे में बात करेंगे, ये बहुत हद तक मीडिया फिक्स कर देता है। जैसे अगर महाराष्ट्र में कोई दिन तो ऐसा नहीं होगा जैसे किसी भी स्टेट में जिस दिन 4 या 5 रेप की घटनाएं ना हो, ऐसा कोई स्टेट नहीं है भारत में, सब जगह होता है। अब यहाँ के न्यूज़पेपर्स उन रेप की घटनाओं को नहीं छापते, ऐसा भी नहीं है। जैसे भंडारा में एक रेप हो गया, लोगों ने सड़क जाम कर दिया, भंडारा के अखबार में तो जरूर छपेगा, लेकिन भंडारा के उस रेप की घटना और ऐसे सारे रेप की घटना को अगर मैं बम्बई के में पहले पन्ने पर हर दिन छापना शुरू करूं कि महाराष्ट्र में 5 रेप हो गया, 4 रेप हो गया, 3 हो गया, भंडारा और औरंगाबाद और वहाँ भी रेप हो गया, 5वें दिन आपको लगने लगेगा कि महाराष्ट्र में जंगल राज है। 5वें दिन आप परेशान हो जाएंगे, आपको लगेगा कि गया महाराष्ट्र तो लॉ एंड ऑर्डर में बिहार से पीछे। लेकिन अगर वो खबर जिले के अखबार में छपी, आपको नहीं बताया गया, तो आपको लगेगा कि लॉ एंड ऑर्डर जनरली ठीक है, इतना बुरा भी नहीं। ऐसे ही हमारा ओपिनियन बनता है ना। सच कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? आप सोच लो, आप जरा सोच के देखो, हर दिन सुबह अखबार खुले, पहली हेडलाइन छपे कि महाराष्ट्र में 5 बलात्कार हो गए, आपको लगेगा कि ये राज्य रहने लायक नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे ही होता है। तो आप उसमें पार्टिसिपेंट हैं, उस प्रोसेस के, आप हैं उस गेम के अंदर हैं। आप चोट पड़ेगी तो आप पे ही पड़ेगी, और फायदा भी होगा तो आपको होगा कुछ ना कुछ तो होगा उस प्रोसेस के अंदर। अभी मैं पहले, दूसरे, तीसरे पॉइंट को मोटे तौर पर मैंने डील कर लिया। भारत का 93% पॉपुलेशन इस मीडिया को कंज्यूम क्यों करता है? कंज्यूम करने के अंदर पैसा भी देता है, भरोसा भी करता है। क्या है, क्या मिस्ट्री है? मतलब यूएस में एक बुक है, निग्रो प्रेस, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है, द निग्रो प्रेस नाम से एक ही किताब लिखी गई है, इसलिए आप उसको ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। उस बुक में ये लिखा गया है, 1949 में पब्लिश हुई है। उस रिसर्चर की ये पीएचडी थीसिस है, नहीं मोनोग्राफ है, और उसका फील्ड वर्क 48-49 है। उसमें उन्होंने निग्रो प्रेस का जो स्टेटस है वो उन्होंने बताया है। 1948-49 में यूएस में 6 ऐसे पब्लिकेशंस थे, 6 ऐसे डेलीज थे जिनका सर्कुलेशन 1 लाख से ज़्यादा था। ओन्ड बाई ब्लैक्स, रन बाई ब्लैक्स, और मेनली कंज्यूम्ड बाई ब्लैक्स। उस समय ब्लैक पॉपुलेशन वहाँ पर 11% के आसपास थी। 11% ब्लैक पॉपुलेशन प्रोड्यूस कर रही थी 6 न्यूज़पेपर्स विथ डेली सर्कुलेशन ऑफ 1 लाख, और उसमें सबसे ज़्यादा जो बिकता था वो 2.89 लाख उसका डेली सर्कुलेशन था। तो अमेरिका में अगर 11% ब्लैक और 5000 से 1 लाख के सर्कुलेशन के बीच में 50 न्यूज़पेपर्स, वो सारी लिस्ट उसमें है। उसमें शिकागो डिफेंडर है, वो बहुत सारे, अलाबामा प्रेस है, वो सारे न्यूज़पेपर्स हैं। उसका सर्कुलेशन भी उसमें लिखा हुआ है, उस समय के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट का डाटा है कि इतने इतने ये न्यूज़पेपर्स बिकते हैं। तो अगर अमेरिका का ब्लैक्स, और देखिए मैं बात कर रहा हूँ तब की 48 की, उस समय
सिविल राइट्स के लॉज नहीं आए थे, ब्लैक्स वाइट्स के रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते थे, ब्लैक्स और वाइट बस में एक सीट पर नहीं बैठ सकते थे, उनके वर्क फ्लोर्स अलग अलग होते थे काम के। उस समय जब इतना सेग्रीगेशन था पूरा एकदम सख्ती से, 1968 तक ब्लैक्स की पब्लिक लिंचिंग पर किसी को सज़ा नहीं होती थी। लास्ट लिंचिंग हैपेंड इन 1968। तो वो पॉपुलेशन अगर 1 लाख सर्कुलेशन वाले 6 न्यूज़पेपर प्रोड्यूस कर रही थी, 5,000 से ज़्यादा डेली सर्कुलेशन वाले 50 से ज़्यादा पब्लिकेशन पब्लिश कर रही थी, तो भारत में ऐसा क्या है कि यहाँ पर 16% से ज़्यादा दलित्स, 8% से ज़्यादा ट्राइबल्स और ऑलमोस्ट 52% के आसपास जो मंडल कमीशन का डाटा जिसके हिसाब से ओबीसी अपना एक भी न्यूज़पेपर ऐसा नहीं पब्लिश कर रहा है जो मेरे हिसाब से इस समय देश में 5,000 भी बिक रहा है। कैसे वहाँ वो यहाँ तो डेमोक्रेसी है, तब हम सारे लोग साथ बैठते हैं, बस में साथ ट्रेवल करते हैं, कोई अलग रेस्टोरेंट नहीं है, सिनेमा हॉल में अलग सीटें नहीं हैं, सब कुछ इतना अच्छा है। तो फिर ऐसा मीडिया हम कंज्यूम करते हैं जो कि हमारे खिलाफ लिखे जाता है, हमारे नेताओं को देवन बनाया जाता है, हमारे जो इंटरेस्ट है उसके खिलाफ ही कुछ ना कुछ करेगा, ये भी तय है। ना हमारे लोगों को पैनल में बुला रहा है डिस्कशन में, ना हमारे एंकर हैं, हमारे जैसे चेहरे वहाँ नहीं हैं, मतलब तमाम तरह के इशूज़ हैं। एक डिस्कशन मैं आपको दिखाता हूँ, अभी 2 दिन पहले हुआ, उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये एक रवीश कुमार का डिस्कशन है। रवीश कुमार सिर्फ आप इनका सोशल क्लास जानते हैं, वो एक डिस्कशन कर रहे हैं मोहब्बत से नफरत नाम का। उसमें उन्होंने पैनलिस्ट बुलाया है देवेश उपाध्याय, प्रभात झा, प्रोफेसर अपूर्वानंद झा एंड चारू गुप्ता। नाउ ये हर दिन हो रहा है, आज जाएंगे तो भी होगा, कल जाएंगे देखने तो भी होगा, कल हुआ था और कल होगा, ये हर दिन हो रहा है। इसके बावजूद ऐसा क्या है कि हम उस मीडिया को कंज्यूम भी करते हैं, उसको भरोसा भी करते हैं, पैसा देके भी खरीदते हैं, कई बार केबल वाले को भी पैसा देते हैं, अखबार को भी पैसा देते हैं और उस पर भरोसा करके बाकी सारा कुछ कर रहे हैं। ये मिस्ट्री है मेरे लिए, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हुआ क्या है। या आप दूसरे तरफ से देखिए, 11 मीडिया हाउसेज ने लालू यादव और नीतीश कुमार हार जाएंगे ऐसा ओपिनियन पोल किया। 11 में 9 ने तो बुरी तरह हार जाएंगे ओपिनियन पोल किया। अभी ये 11 मीडिया हाउसेज, और ख़ास करके जो बिहार के मीडिया हाउसेज है, क्योंकि बिहार में कॉरपोरेट नहीं है, बड़े कॉरपोरेट एक भी नहीं है, और FDI भी अभी तक $0 आया है, तो गवर्नमेंट वहाँ सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है। तो ये ऐसा क्या है कि लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी की सरकार, आज भी अगर आप कोई भी ई-पेपर पटना का निकाल के देख लीजिए, इस समय भी आप अपने मोबाइल फ़ोन पर, तो उसका एडवर्टीजमेंट मैक्सिमम बिहार गवर्नमेंट ही दे रही है। या जब बहन जी के खिलाफ सारे अभियान चलाए गए, सब कुछ हुआ, जंगल राज वगैरह वगैरह, ये करप्शन मूर्ति बना के सब बर्बाद कर दिया, सारा मीडिया ने खास तरह कैंपेन चलाया, लेकिन बहन जी के समय में यूपी गवर्नमेंट ने यूपी मीडिया को सस्टेन किया। ये क्या है आपको मालूम है? कोई मजबूरी तो है नहीं कि मैं आपको न्यूज़पेपर का ऐड दूँ, मैं नहीं देता। हम गवर्नमेंट मीडिया है, अपना हम उससे काम चला लेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन हमको डिसिमिनेट करनी है तो हम अपने तरीके से कर लेंगे। हमारे पास डिपार्टमेंट, हमारे पास लोग हैं, हम वैन ले जाएंगे हर शहर में, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर देनी है किसी स्कीम के बारे में जैसे बताएंगे। 50 तरीके हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल क्लास है जिसके खिलाफ मीडिया लिखेगा ही, लिख रहा था, ये पॉलिटिकल क्लास क्यों इस मीडिया को सस्टेन कर रहा है? हम खरीद रहे हैं, और जो पॉलिटिकल क्लास है हमारा, जो मतलब SC OBC के जो लीडर्स हैं और जो क्लेम करते हैं कि हम इनके लिए काम करेंगे, ये इस मीडिया को क्यों सस्टेन कर रहे हैं, क्यों उसको पैसे दे रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम। ये इसमें कुछ हाइपोथेसिस मेरी हो सकती है, कुछ सवाल मेरे दिमाग में हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ स्कॉलर्स मुझे इसको समझने में मदद करते हैं, जैसे स्टुअर्ट हॉल हैं। स्टुअर्ट हॉल ब्लैक सोशोलॉजिस्ट हैं, वो
ये बताते हैं अमेरिकन एंड यूरोपियन मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि जो मीडिया है उसके बारे में ये बोलना गलत है कि ये कॉर्पोरेट मीडिया है या वाइट मीडिया है। मीडिया वैसा नहीं होता। अगर मीडिया ऐसा है तो फिर मीडिया जिंदा नहीं रह सकता है। मीडिया असल में एक सिस्टम है, वो ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो अंडर क्लास है या जो वो रेसेस जो हेजेमनी में नीचे दबी हुई हैं, वो उनका एक कंसेंट इनको मिलता है। इससे हेजेमनी थ्रू कंसेंट। हमको अभी भी भरोसा है कि मीडिया सही जानकारी देता है। मीडिया के अंदर अपर कास्ट के होने के बावजूद कुछ अच्छे लोग हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं और वो हमारी बात बोल देंगे। ये कहीं ना कहीं उस सिस्टम को क्रिएट कर रहा है जिस सिस्टम की वजह से आप देखिए ना, मंदिर में क्यों जाता है एक दलित, जबकि वो हर दूसरे दिन पढ़ता है कि मंदिर में गया था तो मार पड़ी थी। जाता है ना, जा रहा है ना भाई, ऐसा तो नहीं कि नहीं जा रहा है। तो ये उसको कोई आज की तारीख में ये भी नहीं कि जबरदस्ती चलो मंदिर नहीं तो पीटेंगे। मतलब उसकी तकलीफ ये हो सकती है कि हमको दक्षिणा नहीं देने दिया। बताओ, हम मंदिर में जाके पैसा देना चाहते तो हमको देने नहीं दे रहा। मतलब इस लेवल का कंसेंट है कि मतलब एक नॉर्थ इंडियन वाइफ अगर उसका पति थोड़ा प्रोग्रेसिव कह रहा है कि करवा चौथ का व्रत मत रखो, तो पति से नाराज हो जा सकती है। बताओ, मुझे करवा चौथ का व्रत नहीं रखने देते, कैसा आदमी है? सभी तो अजीब आदमी है, मुझे विधवा बना के छोड़ेगा। मतलब आप वो कंसेंट असल में इसी तरह से क्रिएट होता है कि हमें लग रहा है कि जैसा चल रहा है ये उतना बुरा नहीं है। इसलिए यूएस में ब्लैक्स अपना मीडिया चला पाए कि उनको लग रहा था कि इतना बुरा है, ये प्रॉब्लमेटिक है और हमको अपना मीडिया चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारी बात नहीं बोलेंगे। इसलिए वहाँ पर ब्लैक मीडिया था। जब जैसे जैसे वहाँ पर मीडिया में डाइवर्सिटी बढ़ी है, वैसे वैसे ब्लैक मीडिया का स्पेस श्रिंक हुआ है। तो भारत में उन्होंने अपर कास्ट डोमिनेशन नहीं छोड़ा है, लेकिन कंटेंट में उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से हमको लगता है कि हमारा भी ख्याल ये रख देंगे और हमको अलग मीडिया की क्या जरूरत है। हमको अलग मीडिया की क्या जरूरत है, जबकि वो वहाँ पर एक बैठा हुआ तो है, वो दुबई जी हमारा ख्याल रख देंगे। अच्छा, कितना प्रोग्रेसिव है, लेफ्टिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं, वगैरह वगैरह हैं, तो दे विल टेक केयर ऑफ अस ऑल्सो। हमको अपना आदमी क्यों चाहिए? वो देखोगे वो तो कितना बढ़िया बोलते हैं, वो इंडो इजराइल रिलेशन तो कितना प्रोग्रेसिव है, तो हमारा भी ख्याल रख लेंगे। तो मतलब इस तरह से ये, हालांकि मुझे नहीं मालूम कि ये सही है कि नहीं है। जैसे बाकी तीनों चीज़ों के लिए मेरे पास एम्पेरिकल डाटा है। मैं आपको अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको 4 डाटा यहीं पर इंटरनेट से निकाल के दिखा दूंगा कि हाँ अपर कास्ट डोमिनेशन है, कॉर्पोरेट है और कैसा कंटेंट प्रोड्यूस करता है, इसके लिए मेरे पास डाटा है। लेकिन जिस पर हम अंडर क्लास है या जो सोशल स्पेक्ट्रम में नीचे की तरफ जो लोग हैं, वो उस मीडिया पे क्यों भरोसा करते हैं, इसका मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया है, लेकिन मतलब पक्का नहीं पता है। तो ये है टोटल मीडिया का स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से एक खास तरह का कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है और सारे लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। और इस वजह से इंडिया में दलित मीडिया, ओबीसी मीडिया, इवन माइनॉरिटी का अपना मीडिया थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि वो रिलीजियस तरीके से थोड़ा बहुत उनको लगता है कि अपना होना चाहिए। उर्दू लैंग्वेज की वजह से उनको ऐसे भी लगता है कि एक मार्केट भी है उसका। ट्राइबल का भी अपना कोई मीडिया नहीं है, मगर कोई ढंग का मीडिया इन सोशल ग्रुप्स के अंदर से। अब मैं थोड़ा बहुत ब्रॉड टर्म बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ ट्राइबल ग्रुप्स का अपना मीडिया हो, लेकिन मैं पूरे इंडिया को एक अगर एंटिटी के तौर पे देख रहा हूँ और बाकी के सर्कुलेशंस को देख रहा हूँ, तो वो बहुत छोटा सर्कुलेशन होगा। तो उस हिसाब से अपना मीडिया यहाँ पर इसलिए नहीं बन पाया है क्योंकि अभी भी उसकी ज़रूरत लोगों को महसूस नहीं होती। और क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि अगर कॉर्पोरेट लॉजिक लें तो कॉर्पोरेट लॉजिक के हिसाब से SC ST और OBC के कंटेंट को हिस्सा मिलना चाहिए। इतने साल के रिजर्वेशन के बाद और थोड़ा मार्केट वगैरह की वजह से एक शेड्यूल कास्ट का मिडिल क्लास और OBC का ठीक ठाक मिडिल क्लास अब आ गया है। अभी अगर कोई मीडिया बहुत ब्लेटेंटली और एग्रेसिवली इन इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। वो बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से, बहुत कनिंग तरीके से अपना कंटेंट प्रोड्यूस करेगा, जो कि साल भर आपको लगेगा कि बहुत सब कुछ ठीक ठाक है, किसी क्रूशियल जंक्चर पे आपके खिलाफ कुछ करके वो निकल जाएगा। वो उस समय तक आप इतना ज़्यादा भरोसा कर चुके होंगे कि वो एक दिन जब वो ऐसा कुछ एक ओपिनियन पोल ला के
आपको बताएगा कि आप लोगों की पार्टी तो गई, तो आपको लगेगा कि ये ठीक ठाक लोग हैं और जो बोल रहे हैं ठीक ही ठाक बोल रहे हैं वो, ये आपके साथ हो जाएगा। और आप बहुत अलर्ट भी होंगे तो भी आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपकी कंडीशनिंग है वो बहुत लंबे समय में हुई है, ये तुरंत नहीं जाता है। तो मैं कितना मैं बोल गया हूँ, कितने घंटे बोल, मतलब कितने मिनट बोल चुका हूँ, और काफ़ी बोल चुका हूँ, ठीक है। या तो ये 3 मेरे फैक्ट्स थे और एक चौथा मेरा आइडिया या हाइपोथेसिस था। तो मीडिया को मैं इस तरह से देखता हूँ। या क्वेश्चंस बताइए प्लीज़, या कोई कमेंट हो तो भी बताइए, मेरी थोड़ी मदद भी कीजिए कि मैं जानना भी चाह रहा हूँ कि वो क्या है। We'll have 3 questions around. After each round, sir will answer next session. नहीं, हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं हो, लेकिन प्लीज़ पूछिए। 3 questions per round. My question is a sort of extension to the first 3 rounds. So this is in terms of a solution to what you said. So we have alternative forms of media these days, like we have RTI or National Desktop or Dalit Camera, etc. So what do you think how these alternative platforms are serving our people and the needs of very progressive minorities, as well as how can we answer questions like access, privilege to use internet, all these things, how do we overcome all these things? Fine. Yeah. सर मेरा क्वेश्चन ये है, अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जो पतंजलि का जो मोटो था वो शिफ्ट होके अभी जैसे कैडबरी को पीछे छोड़ दिया उसने। सर खुशियाँ FMCG में शायद लार्जेस्ट एडवर्टाइजर है सर, और हर चैनल पे पतंजलि का एक साइड में स्ट्रीम चल रहा है। तो सर ये किस तरह से आगे, जैसा ही आगे की इलेक्शन की तैयारी है, किस तरह से काम कर रहे हैं? ओके फाइन। और साथ ही साथ सर क्वेश्चन ये है, मैं जब KSS में आया था तो जैसे फॉर एग्जांपल 2012 में निर्भया का जो घटना हुआ था दिल्ली में, तो सर निर्भया, मेरा प्रश्न सभी को है, निर्भया ये सबको पता है, निर्भया ये सबको पता है, क्योंकि ऐसा नहीं वो भी गलत, लेकिन सर वो मीडिया बहुत कवर किया था। लेकिन वही सर अगर सोनी के हमारा भी बोला जाए, ठीक है, तो ये डेटा में बहुत होता है, जिसमें ये बहुत लोगों को नहीं पता है, तो इसका क्या थोड़ा बहुत ठीक है, ओके। या व्हाट क्वेश्चन प्लीज? सर मेरा यशवंत है। आपने जो तीसरा जो सवाल पूछा है, हमसे जो पूछने की कोशिश की थी, ये क्यों नहीं हो रहा है, और मतलब जैसे कि दलित या तो OBC इसमें से मीडिया नहीं आता, लेकिन महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो न्यू बुद्धिस्ट कम्युनिटी के कुछ मीडिया है, जैसे कि महानायक है, सम्राट है, तो ये कॉन्शियसनेस जो उनके पास आया हुआ है, फिर उससे कुछ अल्टरनेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम कैसे समझें? फाइन, ठीक है। जो सबसे आसान वाला सवाल है वो पहले मैं ले लेता हूँ। पतंजलि एडवर्टाइज बहुत ज़्यादा कर रहा है, ये सच है, और कंटेंट को वो थोड़ा सा इम्पैक्ट ये करेगा कि मॉडर्न साइंटिफिक जो चीज़ें होंगी, जो आयुर्वेदा वगैरह का जो एक ऑरा है, उसको अगर कुछ चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होगी तो वो वाला कंटेंट कम हो जाएगा। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ न्यूज़ अगर कुछ है, तो अगर ये पता भी चल गया कि ऐसा करने आयुर्वेद की इस दवा को का एक्स इफेक्ट नहीं है, तो भी वो मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़े एडवर्टाइजर हैं इस समय, तो उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते हैं कि आप उसके खिलाफ करके कुछ चल जाएँ। निर्भया और सोनी सोरी का तो मामला वही है जो मैं आपको बोल रहा था कि आप उनको सोनी सोरी वाला ऑडियंस चाहिए ही नहीं, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें स्पेस नहीं है, वो नहीं होगा। ये वही जो वसंत विहार सिंड्रोम है, ये निर्भया को कवर करेंगे
वो घटना दिल्ली के पॉस इलाके में होती है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, सोनी सोरी वो नहीं है, सोनी सोरी वाला वो ऑडियंस नहीं है, इसलिए वो नहीं करेंगे। तो महाराष्ट्र वाला जो इशू है वो सही है कि यहाँ पर एक मीडिया बना है, कम से कम 2 चैनल्स हैं यहाँ पर, लॉर्ड बुद्धा चैनल और आवाज़, और उसकी एक ऑडियंस भी है, लेकिन अभी कॉर्पोरेट और बिजनेस टर्म्स में बहुत सक्सेसफुल वो नहीं है, बहुत ज़्यादा वो चंदा वगैरह पर डिपेंड है। और न्यूज़पेपर्स भी जो आप बता रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम कि इनके सर्कुलेशंस क्या हैं, कोई सर्कुलेशन फिगर्स हैं क्या इनके, कितना, जैसे आप में से कितने आदमी रेगुलर उसको लेते हैं? नहीं चल रहा है ना अभी, मतलब अभी अपने लोग नहीं ले रहे हैं, तो फिर हम ये माने कि ठीक है, लेकिन मतलब कोशिश है महाराष्ट्र में, एटलीस्ट महाराष्ट्र में इसका मतलब एक लेवल का कंसेंसस है कि अपना मीडिया होना चाहिए, इसको लेकर एक कंसेंसस है। और जो 2 बुद्धिस्ट चैनल चल रहे हैं, इसको मैं एक जो न्यू बुद्धिस्ट क्लास का एक ग्रुप है वो अपना मीडिया देखना चाहता है, इसलिए वो मीडिया है और उसको सस्टेन करने वाले एडवर्टाइजर्स हैं, इसलिए वो सस्टेन हो जा रहा है, लेकिन उसकी रीच और वो इम्पैक्ट भी नहीं है। आप इस तरह के मीडिया में प्रॉब्लम है, जैसे आरएसएस के की जो मैगजीन है उसका नाम क्या है, ऑर्गेनाइजर और पांजन। एक आरएसएस का आदमी भी जो आपके कैंपस में होगा और बहुत होंगे, वो भी सुबह का जो न्यूज़पेपर है वो या जो डेली न्यूज़ है, हैपनिंग्स हैं, इसको जानने के लिए ऑर्गेनाइजर या पांजन नहीं लेता है, या जो सीपीएम का आदमी भी होगा वो न्यू डेमोक्रेसी वो नहीं, उसको सब्सक्राइब नहीं करेगा। एक जो मीडिया एक न्यूट्रल किस्म का नेशनल मीडिया टाइप या स्टेट का मीडिया टाइप जो मीडिया है ना, जो इस जो मीडिया सिस्टम की तरह काम कर रहा है, वही मीडिया असल में सक्सेसफुल है। ये जो बुद्धिस्ट मीडिया है, इसको जो न्यू बुद्धिस्ट भी होंगे वो न्यूज़ के लिए कंज्यूम नहीं कर रहे होंगे। आज देश में क्या हुआ जानने के लिए जब वो रात में 8 बजे या 7 बजे जब चैनल खोलते होंगे, तो मुझे शक है कि वो भी आवाज़ या इसको वो देखता होगा। इसके लिमिटेशंस हैं असल में। जैसे जो ब्लैक मीडिया जब अमेरिका में बोलते हैं ना, तो ब्लैक मीडिया को अगर आप देखेंगे उसको वो पेजेस आप मिल जाएंगे, इमेजेस में अगर आप सर्च करेंगे तो निग्रो प्रेस करके ब्लैक मीडिया बोलते हैं, तो वो असल में कंप्लीट न्यूज़पेपर निकाल रहे थे, अभी भी निकाल रहे हैं। आप अगर आपने शिकागो डिफेंडर खरीद लिया तो आपको साथ में वॉशिंगटन पोस्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में जो खबरें आपके मतलब की हैं वो भी वहाँ पर हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी खबरें बता रहा है, वो एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर वो उसका एक सर्टेन स्लांट है। यहाँ पर अगर सिर्फ दलित के न्यूज़ दिखाएंगे तो पांचजन्य जैसे आरएसएस वाला लोग नहीं लेता है, वरना पांचजन्य को इस देश में 2-3 करोड़ बिकना चाहिए, नहीं बिकता है, मुश्किल से कुछ लाख मतलब 1000 बिक रहा है। आरएसएस का होने के बावजूद ऑर्गेनाइजर लोग नहीं खरीद रहे हैं इतना, उनका अपना जो मेंबरशिप है वो भी अगर सारा खरीद ले तो उसको मतलब 60-70 लाख तो बिकना चाहिए, लेकिन नहीं बिकता है। तो ब्लैक मीडिया जो अमेरिका का था वो सक्सेसफुल इसलिए था कि वो मीडिया सिस्टम उन्होंने बनाया कि एक ब्लैक ओनर एक ब्लैक जर्नलिस्ट के साथ मिलकर एक ब्लैक्स के लिए कंटेंट बना रहा है और एक न्यूज़पेपर प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस न्यूज़पेपर को लेने के बाद मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि मैं न्यूयॉर्क टाइम्स लूँ, लेता हूँ तो चलो सेकंड न्यूज़पेपर है, मैं अगर 2 न्यूज़पेपर लेता हूँ तो एक वो भी ले लूँगा। तो ये असल में जो अभी जो हमारा मीडिया उसने उस ज़रूरत को पूरा नहीं किया है। पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि क्या न्यू मीडिया आने के बाद सिनेरियो बदलेगा, या बल्कि आप इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से फ्रेम करें कि आज से 1 साल बाद अगर आप यहीं पर इस लेक्चर को देने के लिए आएंगे तो क्या कुछ बदलाव मिलेगा। देखिए न्यू मीडिया तो अब आ गया है हम लोगों की लाइफ में। इस समय इंडिया में आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, KPMG और फिक्की की मीडिया रिपोर्ट है, 30 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो स्मार्टफोन हैं। तो 30 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जो कि इंटरनेट कंज्यूम कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन पर। टोटल करीब वो 39 करोड़ के आसपास इंटरनेट यूजर्स इस देश में हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। हो सकता है डाटा बहुत ऑथेंटिक ना हो, लेकिन वो थोड़ा सा वो हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा सा उसको प्रेशअप किया हो, लेकिन ठीक ठाक संख्या में लोगों के पास स्मार्टफोन्स आ गए हैं, इंटरनेट आ गया है। ये नंबर्स बढ़ने वाला भी है।
हालांकि भारत सरकार ने कोशिश की है कि ये नंबर्स ना बढ़े। भारत दुनिया के उन देशों में जहाँ पर ब्रॉडबैंड सबसे स्लो जिन लोगों में है वहाँ पर हमें, और सबसे महंगा ब्रॉडबैंड जहाँ पर है उन देशों में, दोनों कैटेगरी में हमें। तो ये अभी का सिनेरियो है। इसके बावजूद मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और ये जियो ने जो किया पिछले साल वो भी उसने भी बहुत ब्रॉडबैंड का मार्केट बड़ा कर दिया है। अभी एक चीज़ पता नहीं आप लोगों की नज़र में आई कि नहीं आई थी, पिछले साल फेसबुक ने एक ऑफ़र किया था फ्री बेसिक। आप लोग सबको जो भी फेसबुक पे होंगे, फेसबुक का हर दिन ऐड हुआ, फेसबुक खोलने के बाद वो ऐड देखना ही पड़ता था, कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास नहीं देखने। फ्री बेसिक को देना चाह रहे थे भारत में। फ्री बेसिक क्या था कि अगर आप इंटरनेट पर ब्राउज़र से या ऐप पे फ्री बेसिक खोलेंगे तो जो डाटा कंज्यूम करेंगे वो डाटा, उस डाटा का खर्चा फेसबुक ने कहा था कि आपको नहीं देना पड़ेगा। ये पहले से हम जो डाटा प्रोवाइडिंग कंपनीज़ हैं उनको हम पे कर देंगे। मतलब अगर सारी कंपनियां ये सारे वेबसाइट्स ये करने लगे तो ये दिन आएगा कि आप इंटरनेट, आप उन साइट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। मान लीजिए कि गूगल ने भी कल ये कर दिया कि फ्री बेसिक लो, तो गूगल पे आप होंगे, गूगल पे सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन डाटा जो खर्च हो रहा है वो वोडाफोन को या रिलायंस को या आइडिया को वो कंपनी दे रही होगी। फेसबुक ने ये ऑफ़र किया था, कंपनी ने बाकायदा अनाउंस भी कर दिया कि हम फ्री बेसिक देंगे, आप फेसबुक पर जितना रहिए कीजिए, जो करना कीजिए, पैसा हम देंगे, आप बस रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट से कमाएंगे। उस साल फेसबुक आपको फेसबुक करने का एक पैसा भी नहीं लेता है, लेकिन फेसबुक ने इंडिया में 750 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था। तो वो रेवेन्यू वही था, वो ऐड और ये सबसे उन्होंने कमा लिया। उनको लगा कि ऐड से हम कमा लेंगे, ये मतलब फालतू लोग होता है, 1-2 रुपये लेंगे, क्या फ़ायदा है। तो उन्होंने फेसबुक आपको फ्री दे दिया, तो फेसबुक जितना करना करो। साथ में उन्होंने ऑफर दिया कि डाटा भी आप, डाटा का भी खर्चा आपको क्यों करना है, डाटा का अगर 50-100 करोड़ का खर्चा ये भी हम सारे डाटा प्रोवाइडर्स कंपनीज को दे देंगे। ये चीज़ अगर हो गई होती तो अभी जो 30 करोड़ का डाटा है मोबाइल इंटरनेट यूजर्स का, ये डाटा चला जाता होता है 60-70 करोड़ तक। भारत में लगभग हर परिवार में लोग कंज्यूम कर रहे थे, गरीब इलाकों में भी कंज्यूम कर रहे थे। सेकेंड हैंड एक स्मार्टफोन खरीदते, 2000 का टूटा स्क्रीन वाला भी ले लेते और उसी से फिल्म देखते, अपना कुछ करते रहते। तो होता ही है, गाना सुनते, फ़ोन कंज्यूम करते, कुछ भी करते, वो ले लेते ग्राउंड, एक बार मोबाइल तो लेते जरूर। लेकिन ये जैसे ही होता क्या, इसका असर ये पड़ता कि जो अभी का मीडिया है उसका एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू जो है वो फेसबुक के पास चला जाता है। भाई आप अगर फेसबुक पर एक वेबसाइट खोलिए और उसका जो डाटा कंज्यूम हो रहा है अगर फेसबुक दे रहा है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दिल्ली के जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ उसमें 2400 फ्लैट हैं, करीब 2400 कुछ, 2400 समथिंग। हमारे यहाँ एक मिस्टर त्यागी हैं, वो न्यूज एजेंट हैं और वो उन्होंने 12 स्कूटीज़ 12 लड़कों को दे रखी है और वो हर घर में नीचे फेंकते हैं। मिस्टर त्यागी जो हैं 1 तारीख से 10 तारीख तक हर घर में जाके पैसा वसूल करते हैं, पैसा लेते हैं। वो हमारे यहाँ आए थे तो हमने उनको चाय पिलाया, पूछा कि कैसा क्या क्या हो रहा है, कौन सा न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, किसका घट रहा है। तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई कि 2400 फ्लैट में जिस भी घर में 25 साल से ज़्यादा उम्र का कोई आदमी नहीं है उस घर में एक भी न्यूज़पेपर नहीं जाता। मतलब जिन घर में सिर्फ कुछ कॉल सेंटर के बच्चे रहते हैं, बच्चियाँ रहती हैं, IT कंपनीज़ के लोग, नए लोग रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स ने जो फ्लैट्स ले रखा है किराए पर 3-4 स्टूडेंट्स से मिल के, ऐसे किसी भी घर में वो न्यूज़पेपर नहीं देते हैं। ये ना हमारी नई ऑडियंस है, ये भारत असल में बन गया है। फ्यूचर इज हियर एक्चुअली, अभी फ्यूचर पे आने वाला नहीं है, आ गया है। अभी ये जो ऑडियंस है जो कि अब ऐसा भी नहीं कि इग्नोरेंट लोग हैं, उनको मालूम है कि क्या हुआ, किसने क्या बोल दिया, सब कुछ पता है। ट्विटर पर देख लिया, फेसबुक पर देख लिया, थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह देख लिया, किसी ब्राउज़र देख लिया, उनको पता है कि क्या हो रहा है। तो ये असल में वॉल्यूम फ्री बेसिक जैसा कुछ होता तो बढ़ जाता और इसकी वजह से एड रेवेन्यू बाकी, क्योंकि एड रेवेन्यू तो उतना ही करीब है, हर कंपनी का एड बजट तो फिक्स है। आप लोगों के डिनर का टाइम हो रहा है ओके। तो इस वजह से आप ये देखेंगे कि न्यू मीडिया ऑलरेडी आ गया है, बहुत सारे लोग मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं, वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये और तेज़ी से बढ़ता लेकिन इसको बाकी मीडिया ने इसलिए आप देखेंगे कि सारे मीडिया हाउसेज ने नेट न्यूट्रलिटी का बहाना करके फेसबुक के उस जो उनका जो
इनोवेशन था उसको रोका, मतलब उस कोशिश को रोका कि फेसबुक का फ्री बेसिक किसी भी तरह से ना आए, इसके लिए उन्होंने सारे न्यूज़ मीडिया हाउसेज ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके अभी के लिए उसको रोक रखा है। कहते कितने दिन तक रोक पाएंगे नहीं पता है। लेकिन एक और ग्रुप है जिसका इंटरेस्ट है कि हर आदमी किसी न किसी तरीके से मोबाइल पर इंटरनेट कंज्यूम करे या डेस्कटॉप पे या आईपैड पर कंज्यूम करे। ये ग्रुप है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, आने वाला है अलीबाबा जो पेटीएम पर सवार होकर आएगा। ये चाह रहा है कि पूरा भारत एक बड़ा मार्केट बन जाए ताकि बड़े प्रोड्यूसर्स हों, कुछ ब्रांड्स को बहुत बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करके सस्ते में लोगों तक पहुँचाएं और उसमें ही मार्जिन कमाएं। ये ग्रुप अब मजबूर करेगा कि एक तरफ अब ट्रेडिशनल मीडिया बोलेगा कि आप ब्रॉडबैंड को महंगा रखो, स्पीड मत बढ़ने दो। अभी ये दूसरा जो ग्रुप है, ये जो इंटरनेट के जरिए अपनी मार्केटिंग कर रहा है, अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये कंपनीज फोर्स करेंगे कि आप इंटरनेट को हर आदमी तक पहुंचाओ। मेरा अपना मानना है कि इसमें अमेज़न, अलीबाबा, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट की जीत होगी, क्योंकि जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की लड़ाई में कई बार मॉडर्निटी और ट्रेडिशन में तालमेल तो हो जाता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि मॉडर्निटी आप अपने आप से पीछे चली जाए। थोड़ा सा वो जैसे भारत में इंटरनेट आया तो सबसे पहले जो 100-200 साइट बनी उसमें ब्राह्मण मैट्रिमोनी.com, कम्युनिटी मैट्रिमोनी.com, सबसे मॉडर्न चीज़ का हम सबसे ट्रेडिशनल तरीके से हमने उसको इस्तेमाल किया कि ऑनलाइन आरती, और वो सब बहुत शुरुआत में आया, बहुत पहले आ गया था। ये मतलब अर्ली इंटरनेट अगर आप याद करेंगे तो ये सब हुआ था। तो उन्होंने आते ही उनको लगा कि अच्छा ये है, ये करना है। और मैं अभी लड़का हम कहाँ एक न्यूज़पेपर देते हैं, 2 जिले सब मिलता है तो ब्राह्मण मैट्रिमोनी.com दे देंगे तुमको, यहाँ वहाँ सब जगह कैचमेंट एरिया बढ़ जाएगा। तो ये मॉडर्निटी जो है, ये मुझे लग रहा है कि जो अमेज़न और ये सब हैं ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। इंडियन मीडिया जो ट्रेडिशनल अभी तक का मीडिया उसको दबा के ये आगे बढ़ जाएंगे। और ये एक काम और करेंगे, अभी आप क्या करते हैं, जैसे फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक पे एक लिंक आता है आपके पास, उस लिंक पर क्लिक करते हैं, लिंक पर क्लिक करके आप उस साइट फेसबुक से बाहर चले जाते हैं। जब भी हम कोई एक लिंक लगाते हैं तो फेसबुक का घाटा करते हैं, वो हम कस्टमर को बाहर फेंकते हैं वहाँ से। फेसबुक अभी ये करने वाला है, जो उन्होंने कुछ अमेरिकन मार्केट में ऑलरेडी कुछ हिस्सों में कर दिया है, कि उस जगह के 2 सबसे बड़े या 3 सबसे बड़े न्यूज़पेपर्स को बोलता है कि आप क्या इस सब प्रकार का काम कर रहे हो, विज्ञापन लाते हो, इतना आदमी रखते हो, आप सिर्फ कंटेंट प्रोड्यूस करके हमको दे दो और ये कंटेंट मैं फेसबुक के अंदर पूरा का पूरा डाल दूँगा। और आपको फिर आप एज यूज़र हमें किसी लिंक पर क्लिक करके बाहर नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम उस खबर को वहीं फेसबुक पर पढ़ लेंगे। अभी इसमें एक फेसबुक का फ़ायदा क्या है, या गूगल का फ़ायदा क्या है, या अमेज़न का फ़ायदा क्या है, कि वो आपको, आप जितने अच्छा से खुद को जानते हैं इससे ज़्यादा आपको जानता है। जैसे अभी अगर मैंने एक लिंक टाइप किया कि दिल्ली टू मुंबई ट्रेन, तो उसके बाद मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा मुझे दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट का वो रेट बता देगा, सबसे सस्ता रेट क्या है। वो हमारे सर्फिंग बिहेवियर को इतना अच्छे से जानता है, हम चाहे तो टॉयलेट में जाके चुपके में कुछ इंटरनेट में करते हैं ना, उसको पता है कि आपने क्या किया है। दे नो एवरीथिंग अबाउट अस, मतलब हमारे बारे में उनको क्या नहीं पता है, किससे बात करते हैं। ये रात के 11 बजे एक लड़की से रोज चैट करता है, और दोपहर के समय में खाने के लिए खाना ढूंढता है, और ये ज़्यादातर कलकत्ता जाता है, और कपड़ा खरीदने का ऐड हमेशा देखता है लेकिन खरीदता नहीं है। और उनको वो सारे बिहेवियर हमारा वो देख रहा है सब। तो अगर वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है तो उसको पता है कि एक्स आदमी क्रिकेट देखता है, और क्रिकेट वो साउथ अफ्रीका के साथ जब मैच होता है तभी सबसे ज़्यादा देखता है। उसको ये पता है कि इस आदमी की दिलचस्पी महाराष्ट्र के दलित पॉलिटिक्स के अलावा किसी पॉलिटिक्स में नहीं है। उसको मालूम है कि ये आदमी सुबह सुबह हर रोज़ बुद्धिस्ट चैंटिंग करता है, तो ये पक्का ये उसको उस तरह का प्रोडक्ट सेल करना है, उसको इस तरह की न्यूज़ देनी है। इस आदमी को ये रहता तो मुंबई में है लेकिन हर दिन जौनपुर की खबर जाके देख के आता है, तो वो जानता है सब। इंटरनेट हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जान गया, मुझे तो लगता है कि वो सारे बिहेवियर हमारे जानता है, सब कुछ जान गया, मतलब बहुत गंदे तरीके से हमारे बारे में सब कुछ जान गया है। तो वो हमारे लिए बहुत कस्टमाइज न्यूज़ देना शुरू करेगा। इस आदमी को सब कुछ नहीं चाहिए, इस आदमी को बोल तो रहा है, कह तो रहा है कि एकेडमिक्स जाएगा, लेकिन हर बार सिविल सर्विस का के वो गाइड बुक खरीदने के लिए क्लिक करता है। उसको मालूम है ना, हम बोल रहे हैं सारे दोस्तों को कि हम
कुछ रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उसको मालूम है कि छिप के आदमी रोज़ सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। वो आपको सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड न्यूज़ देगा, आपको आपके मतलब की न्यूज़ देगा, उसको मालूम है कि आपको क्या चाहिए, तो ऐसे 20 न्यूज़ दे देगा तो आपका काम हो जाएगा। फेसबुक ने अगर ऐसे 20 न्यूज़ के लिए किसी भी 2 न्यूज़पेपर से अपना अगर टाइप कर लिया तो सारा ट्रैफिक उनके पास लग जाएगा। तो ये असल में इस तरह का नया सिनेरियो आ रहा है। अब इसमें जो आपका सवाल है कि ऐसे सिनेरियो में जो नहीं आया है उसको छोड़ दीजिए, जो आज की सिनेरियो है इसमें क्या अल्टरनेटिव मीडिया, ये नेशनल दस्तक या दलित दस्तक या नेशनल जनमत या दलित कैमरा या राउंड टेबल, ये इनका क्या होने वाला है। ये मैं अभी तक बहुत पेसिमिस्ट नहीं हूँ, और मैं क्योंकि खुद उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हूँ, मुझे लगता है कि अभी भी इस प्रयोग को करके देखना चाहिए। लेकिन फेसबुक ने अगर ये देख लिया कि आप इस तरह का कंटेंट लगातार दे रहे हैं, या गूगल ने देख लिया कि इस तरह का न्यूज़ आप दे रहे हैं, और कहने को वो एक एल्गोरिदम है, एक मशीन है जो कि डिसाइड करती है कि आप पहले देखें कैसे देखें, लेकिन कोई एक आदमी ही तो है जो कि फेसबुक इंडिया के ऑफिस में बैठकर ये डिसाइड कर रहा है कि इस तरह का जो न्यूज़ दे रहा है इसके इस पेज की रीच घटा देनी है, या एक एक्स जो वेबसाइट है ये हर दिन ओबीसी कोई ना कोई खबर देता है, जातिवाद फैला रहा है, इसको हमें 8 दिन ब्लॉक कर देना है। ये हो रहा है इस समय। इन सारी साइट्स की इस समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनकी रीच बहुत घटा दी गई है। जैसे दलित दस्तक ने गूगल न्यूज़ को कहा, गूगल का न्यूज़ आता है कि आप न्यूज़ में इतने सारे लोगों को न्यूज़ देते हैं, हम भी 25-30 न्यूज़ हर दिन डाल रहे हैं, तो आप गूगल न्यूज़ फीड में हमको भी दे दीजिए। गूगल ने कहा कि नहीं, आप को हम नहीं दे सकते हैं, बाकायदा लिख के बता दिया कि नेशनल दस्तक को हम गूगल न्यूज़ में नहीं आने देंगे। असल में वो अमेरिका में बैठा हुआ एक इंजीनियर हो सकता है कि इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में नहीं जानता है, उस तरह से एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन गूगल इंडिया के ऑफिस में बैठा हुआ आदमी जो यहाँ का कंटेंट को देखकर डिसाइड कर रहा है कि किसको न्यूज़ फीड में जाने देना है, सर्च में आपका आएगा कि नहीं आएगा, सर्च के टॉप 10 में आप आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो कोई मैनुअली डिसाइड कर रहा होता है। इसमें आपको रोका जाएगा। ये टफ है। अगर कोई चाह रहा है कि बहुत आसान समय आ गया, मीडिया एकदम डेमोक्रेटाइज हो गया और सोशल मीडिया आ गया, हर आदमी के हाथ में इंटरनेट आ गया और मोबाइल आ गया, तो कुछ जादू होने वाला है, तो वही है कि अल्टीमेटली जब कोई सबसे अच्छी चीज़ आएगी ना, तो भारत में उसको ठीक ठाक तरीके से सड़ा दिया जाता है। मतलब आप अच्छे मतलब थ्योरीज का आके यहाँ क्या होता है उसको देखना, तो कम्युनिस्ट पार्टीज को देख लीजिए, मार्क्सिज्म का आकर यहाँ पर क्या हो गया उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर वो कैसा पॉलिट ब्यूरो बनाते हैं, किन इशूज़ को उठाते हैं, किसको छोड़ देते हैं, क्या डिस्कोर्स क्रिएट करते हैं। तो न्यू मीडिया ने आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ खड़ी की हैं, लेकिन मैं नहीं, अभी आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई जादू होने वाला है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद थोड़ा सा स्पेस मिला है, इसको जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना करना चाहिए। इस समय यूट्यूब थोड़ा ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, क्योंकि उसने आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस देता है कि आप जो कंटेंट डालते हैं अगर बहुत देखा जा रहा है तो आपको थोड़ा सा उससे पहले ऐड लगाता है, ऐड का रेवेन्यू आपको देता है। फेसबुक उतना डेमोक्रेटिक साउंड करता है लेकिन वो है नहीं। तो बहुत टफ डोमेन में है सारी नई वेबसाइट्स, 2 कारणों से बहुत टफ डोमेन में है। एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर इन सोशल ग्रुप्स का कंसेंट, जिसकी वजह से अभी हमको अपने मीडिया की बहुत ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो रोका जा रहा है, ये भी बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो रहा है, जो आप जब थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे तो और ज़्यादा होगा। तो बहुत आसानी से आपको कोई अल्टरनेट मीडिया खड़ा करने दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी बात वो पहले वाली है कि अभी हमारे लोगों को भी, जिसको हमारे लोग कह रहे हैं, मतलब पूरे आप डेमोक्रेटिक सेटअप में पूरे भारत को ही लीजिए, भारत में ज़्यादातर लोगों को लगता ही नहीं कि अपना मीडिया होना चाहिए, उनका काम चल जा रहा है। This will be the last round, so we will take 4 questions. अगर 4 क्वेश्चंस है ना, इन दैट केस आप एक साथ सारे क्वेश्चंस पूछ लो प्लीज, है ना। सर मेरा क्वेश्चन ये है, और जब इंडिया में फर्स्ट इमरजेंसी लगा था तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी पीएम थी, तो उन्होंने बना के रखा था कि मीडिया का सेंसरशिप कर दिया, जो भी न्यूज़ होता था वो कवरेज करना सेंसरशिप का सेंसर होता था। राइट नाउ फिलहाल सिनेरियो में क्या हो रहा है कि जो भी मीडिया हाउसेज है और खासकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेज हैं
वो वही न्यूज़ दिखाते हैं जो कि गवर्नमेंट चाहता है या गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली थिंग कि हम अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अभी जो हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि पीएम होता है, जब उसके अंदर मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट होता है, बट अभी जो नहीं दिखा जाता है कोई भी मिनिस्ट्री कोई भी काम करे लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाया जाए, उसकी इमेज को मीडिया से एक बहुत बड़े रोल प्ले कर रहा है। तो इस पर कैसा रहता है? ठीक है, कुछ नेक्स्ट प्लीज Please introduce yourself before asking the question. थोड़ा सा प्रिसाइज थोड़ा छोटा में प्लीज। Sir, I don't have a question, but you said that can we add a point where we don't have too much of information? My name is Anish Sir, I'm in Indian Development Service second year. Sir, हम क्या ये कह सकते हैं कि जो नेशनल मूवमेंट का नेक्सस रहा है इंडिया में, वो हमेशा से पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया का रहा है। फ्रॉम अमृत बाजार पत्रिका टू बंगाल गैजेट, अपर कास्ट हेजेमनी रही। इन मुस्लिम लीग के न्यूज़पेपर्स में भी मुस्लिम जो अशरफ मुस्लिम है उनकी हेजेमनी रही। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पाक डिपेंडेंसी है जो क्रिएट हो चुकी है? और हम ये देखते हैं कि जब टाइम्स ऑफ इंडिया भी कहता है कि भाई रामनाथ गोयनका अवार्ड हम होस्ट करेंगे, या लोकमत कहता है कि जवाहरलाल दर्रा अवार्ड हम होस्ट करेंगे, दिस वर द डिस्टिंग्विश्ड गांधीयंस। तो एक जगह पे जो बंदा पेपर पढ़ रहा है, आप उसकी एक सॉफ्ट लेजिटिमेसी ले रहे हो जब आप गांधीयन का नाम आगे पढ़ रहे हो। दूसरा बात मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर कुकर सिस्टम का जो एक रिफ्लेक्शन है वो दिखाई देता है कि भाई हम दलित के इश्यूज को दिखाएंगे, लेकिन उन्हीं चीज़ों को दिखाएंगे जिससे जो प्रेशर है वो वेट हो जाए, कंप्लीटली स्लीप बाहर ना आए। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ फिल्म लाइक मेरी को हम दिखाते हैं कि भाई हाउ द हीरो ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओवरकम ऑल द इश्यूज, बट हम ये नहीं बोलते कि प्रियंका चोपड़ा इज प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ अ मंगोलाइट रेस। और मुझे ये लगता है कि जो दलित, जैसा यशवंत ने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे महान आए थे सम्राट, हमें ये भी तो समझना होगा कि टू मच ऑफ एक्सक्लूसिव और टू मच ऑफ शार्प आइडेंटिटी इज नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल फॉर योर इकोनॉमिक एज और जर्नलिज्म, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, मेरा नाम मयूरा चौधरी है, मैं क्लास स्टूडेंट पढ़ रही हूँ यहाँ पर। मेरा एक तो पर्सनल भी थोड़ा सा आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे एक बड़ा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली हम देखा जाए कि जैसे कि डंपिंग डाउन ऑफ न्यूज़ यहाँ हो रहा है हर जगह पर, जहाँ पर इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिल रहा है, तो क्या इस वक्त जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, जो दलित कम्युनिटी से जो चाहते हैं कि दलित न्यूज़ ऊपर आए या फिर हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, तो उन्होंने क्या सिलेक्ट करना चाहिए? क्या वो मेन स्ट्रीम मीडिया को उन्होंने जाना चाहिए या अपना मीडिया डेवलप करना चाहिए? मैंने आवाज़ इधर टीवी में काम किया है, तो मैंने देखा कि मुझे न्यूज़ कंटेंट के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं रही, लेकिन उसका रीच के लिए बहुत लिमिटेशंस थी। इवन हमारे खुद के लोग भी उसे पूरी तरह से कंज्यूम नहीं करते, बस जिस तरह रिलीजियस प्रोग्राम से उतना वो लेना चाहते हैं, या फिर काफ़ी कम कुछ गिने चुने इंटेलेक्चुअल पर्सन है जो टू बिल्ड अप आवर ओन मीडिया चैनल। एकेडमिक्स परस्यू करो ना। हाँ सर, इसी से आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है? सारे सवालों के जवाब मेरे पास है नहीं, असल में कम ही जानता हूँ बहुत सारी चीज़ों पर। आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया, तो आपको क्या कभी डोमिनेंस फेस करना पड़ा? सर मेरा नाम ये तो एक अलग से ही टॉपिक हो गया। सर मेरा नाम आशीर्वाद है, मैं एजुकेशन एलिमेंट्री स्टूडेंट हूँ। कहाँ हमने अभी कॉर्पोरेट मीडिया के बारे में बात की, तो जब से तो नेशनल मीडिया जब चालू हुआ लाइक इफ्तार का टाइम हो गया क्या? हो यार, सबको खाने जाने दो यार। ऐसा आपको मैं अब क्या बताऊंगा जो आपको नहीं मालूम है, पता नहीं। गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल्स जो है तो उनका अब तक का कंडीशन क्या है? और एक दूसरा एक और सवाल है कि लाइक हमें अभी फिर से रिपीट करो प्लीज। अभी तक के जो सभी गवर्नमेंट चैनल है लाइक लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी या डीडी नेशनल, हमने कॉर्पोरेट चैनल्स की तो अभी बात की, लेकिन उनका अब तक का कंडीशन क्या रहा है, ये पहला सवाल। और अभी के इस ज़माने के लिए ऑथेंटिकेट न्यूज़ सोर्स क्या है? ओके, Pass it to back. Hello, sir. And this will be the last question. We can discuss outside this hall. नहीं मैं चला जाऊंगा मैं आज। This will be the last question. We are running out of time. Hello sir, I'm Rahul Bhagwat from Livelihoods and Social Entrepreneurship. This is not a question actually. I would like to respond about the discussion we are having here.
one of the key learnings I would take from this lecture today, he spoke about, how opinions are formed, how they easily, control how can we form opinions, okay? And one of the also important how media is biased, the Nirbhaya Hatyaकांड, majority of the masses in the country are not aware about the Khairlanchi Hatyaकांड, where the people from the mother and her 19-year-old daughter were brutally raped. They were tied to a tree and the sticks were inside into their genitals. And still report about the Nirbhaya Kaand, 400-page report by the court. It mentions about this is an unprecedented crime. It means अभूतपूर्व क्राइम है। इस चीज को जो निर्भया कांड को जो मीडिया ने इतना कवरेज दिया, इतना रिस्पॉन्स भी मिला, तो it also shows that how media is worried about these Dalit issues or डन ना? ओके, 2-3 क्वेश्चंस के जवाब मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कि दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कोई ऐसा नॉलेज मेरे पास है नहीं जो अलग से मैं दूंगा। जैसे लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी क्या काम करता है, कैसा करता है और कितना कैसा है, मुझे नहीं लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा कुछ है ना। अपना ओपिनियन आप लोग बना लीजिए इस पर, ठीक है। जो लोकसभा राज्यसभा टीवी क्या है, मतलब जो जिसकी गवर्नमेंट है उसका लोकसभा टीवी होता है, राज्यसभा में जिसकी मेजोरिटी होती है उसका राज्यसभा टीवी होता है, तो वो अपने ढंग से काम करता है। अभी राज्यसभा में वो बैलेंस अभी चेंज हो जाएगा तो अचानक से वो फिर बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या मतलब इसमें बताने का क्या है। ऑथेंटिक न्यूज़ सोर्स क्या है अगर जानना है तो हम कैसे मतलब रियल न्यूज़ तक कैसे पहुँचें, इसका तरीका सिर्फ इस समय ये है कि आप मल्टीपल न्यूज़ सोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, आसान भी है और शायद आप उसके ज़रिए थोड़ा बहुत सच तक पहुँच सकते हैं। और उसमें ये है कि ज़िले में के जो न्यूज़पेपर्स हैं जो ज़िलों से छप रहे हैं वहाँ झूठ बोलना मुश्किल होता है किसी जर्नलिस्ट के लिए या किसी अखबार के लिए। अगर मर्डर हो गया तो बताना पड़ेगा मर्डर हुआ है। बॉम्बे में आके आप जब एक दिन में 12 मर्डर हुए महाराष्ट्र में, ये नहीं बताने से आपका काम चल जाता है। तो जिले के न्यूज़पेपर्स को कई बार देखना चाहिए कि हो क्या रहा है ग्राउंड पर। जैसे अगर किसानों ने टमाटर फेंक दिए तो ये खबर दिल्ली या मुंबई पहुंचने से 7 दिन पहले हो सकता है कि आपको लोकल लेवल पर ये हो चुका होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा, ये फार्मर डिस्ट्रेस वगैरह आपको वहाँ दिखेगा। कोई फॉर्मूला मेरे पास नहीं है कि ऑथेंटिक न्यूज़ कैसे देखें, और ऑथेंटिक भी तो बहुत लोकेशन पे डिपेंड करता है ना। जैसे अभी मैं पुलिस हूँ और मैंने आप पर लाठीचार्ज किया, आपने पत्थर फेंके, कैमरा पर्सन मेरा यहाँ खड़ा है, आपने पत्थर फेंके, मैंने फ़ोटो खींचा, आप स्टूडेंट्स कितने बदमाश हैं ये दिखा रहा है, कैमरा वहाँ पर खड़ा है और उसने शूट किया तो पुलिस कितनी बदमाश है दिखेगा। मतलब इवेंट एक ही हुआ है, घटना एक ही हुई है, आपने कैमरा यहाँ खड़ा है, तो आप कहाँ से देख रहे हैं ज़्यादातर घटनाएं उससे उसका सही होना, ऑथेंटिक होना, सब आपकी लोकेशन पे बहुत कुछ तय होता है। तो ऑथेंटिक वाला मामला तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसको ज़्यादा डील कर पाऊँगा। देखिए ये प्रॉब्लम तो आपने जो सेकंड क्वेश्चन था कि ये एक हिस्टोरिकल ट्रेंड के रूप में है कि एक्सक्लूजन जो है वो आज नहीं हो रहा है। अगर आप बाबा साहब का वॉल्यूम 1 पढ़ेंगे, गांधी रानाडेड जिन्ना, ये वाला अगर पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने मीडिया के करैक्टर के बारे में बहुत डिटेल लिखा है उन्होंने, और लगभग एक लेवल पर शायद वो उनकी डेमोक्रेसी अब पुरानी हो गई है और वो इन सवालों से डरते नहीं। भारत में जैसे कास्ट सेंसस से जो डर है ये बहुत अजीब तरह का डर है, बहुत डरते हैं कि कास्ट का पता चल जाएगा तो अगर 3% ब्राह्मण पता चल गया तो 3% ब्राह्मण के बाद पता चलेगा कि 60% जजेज ब्राह्मण हैं तो फिर क्या हो जाएगा। मतलब ये बहुत इस तरह टॉप ब्यूरोक्रेट्स में 88 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज हैं, अगर ये पता चल गया कि 56 ब्राह्मण है, इधर 3.5% पॉपुलेशन है तो क्या होगा। मतलब वो इस सच को छिपाना चाहते हैं जो लगभग हमें मालूम है, लेकिन डाटा के लेवल पर आ जाएगा। अगर ये कास्ट सेंसस हो गया होता तो ये आज डाटा के लेवल पर होता
कि कितने लोगों के पास कार है और वो कार किन सोशल ग्रुप्स के पास है। इस लेवल का डाटा हमारे पास होता है, क्योंकि सेंसस में आप देखेंगे कितने पक्के घर, कच्चे घर, करीब 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसके पास ज़मीन है, किसके मतलब इतने पानी वो कहाँ से लेता है, इस तरह सिलेंडर है कि नहीं, इतने तरह के डाटा वो कलेक्ट करता है कि आपको बहुत पक्के तरीके से आप कह सकते थे कि ये जो सोशल ग्रुप है इसको आज़ादी का लाभ नहीं मिला है, इसको मिला है, इसको नहीं मिला है, तो इसको हम लाभ कैसे पहुँचाएँ, इस लेवल पर हम बात कर सकते थे। अभी आपके पास हर स्टेट को ओबीसी का फंड मिलता है, कितना मिलता है, ओबीसी की पॉपुलेशन तो मालूम नहीं, कैसे देंगे, ओबीसी किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी में कम है, कहीं बहुत ही कम है। अभी इसका फॉर्मूला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निकाला है, टोटल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में दे दो। बगैर डाटा के काम करने का ये नुकसान है कि किसी स्टेट में हो सकता है कि ओबीसी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन कम है, लेकिन उसको कम नहीं दे सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला ये बनाया है, क्योंकि डाटा नहीं है, कि टोटल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में दे दो। तो इसी तरह से जब आप मीडिया के अंदर डाइवर्सिटी नहीं होने को प्रॉब्लम नहीं मान रहे हैं, तो दरअसल आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस भी नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते हैं, और आप इसी तरह से चीज़ों को चलते रहने देंगे। अभी मेरा दूसरा पॉइंट लगभग जो था वो मैंने कंप्लीट किया कि सोशल कंपोजिशन और इससे रिलेटेड जो ग्लोबल डिबेट्स वगैरह हैं वो क्या है, भारत की सिचुएशन क्या है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब ये दो चीज़ें अगर है, कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट होने की वजह से बहुत सारा पैसा चाहिए, बैलेंस शीट इज इम्पॉर्टेंट, और बैलेंस शीट अगर चाहिए तो उसको एडवर्टीजमेंट से ही पूरा होना है, और एडवर्टीजमेंट तभी मिलना है जबकि आपके पास एक खास तरह का ऑडियंस हो, और वो खास तरह का ऑडियंस एक खास तरह के सोशल ग्रुप्स को बिलोंग करता है, तो उस ऑडियंस के मतलब का कंटेंट आपको प्रोड्यूस करना है, और जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उस कंटेंट को, उनका सोशल ग्रुप्स भी आपने देख लिया। ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से ये डिबेट्स जो सोशियोलॉजी या मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है कि ये दोनों डिबेट इस कंक्लूजन पे पहुंच चुकी है, इसमें कोई फर्दर डिबेट्स नहीं है। ये दोनों इशू एक तरह से आप फ्रीज हो चुका है और सिफाई हो गया है कि ये दोनों चीज़ें तो हैं, सबको मालूम है, कोई इस पर यहाँ तक डिबेट नहीं है। तीसरी चीज़ जिस पर थोड़ा बहुत डिबेट है, लेकिन वो भी जो डाटा है उसको वो प्रूव करता है कि ऐसा ही है, वो कि ये चीज़ क्या प्रोड्यूस करती है, वो जो प्रोड्यूस कर रही है वो किसी खास ग्रुप्स के फेवर में है या नहीं है। इसको अगर आपको देखना हो तो अभी आप थोड़ा पुराना न्यूज़पेपर्स अगर आपको देखना हो, 2006 में जब वो ओबीसी रिजर्वेशन वाली डिबेट थी, तो आप देख सकते हैं किसी भी एक न्यूज़पेपर का आप एडिट का पन्ना खोल लीजिए, एडिट पेज खोल लीजिए, और आप देख लीजिए कि उस टॉपिक पर किन्होंने आर्टिकल लिखे और वो आर्टिकल क्या लिखे गए, क्या डिबेट्स चले। वो जो आप अगर कंटेंट एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो फिर ये जो न्यूज़ रूम है वो एक खास तरह का कंटेंट वो दे रहा है। जैसे कि मैं आपको एक डाटा देता हूँ, कास्ट सेंसस को लेकर 10th एंड 11th जून 2011 में पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी, लोकसभा में 2 दिन की पूरी डिबेट थी। 2 दिन की पूरी डिबेट में के बाद ये एक कंसेंसस बना सारी पॉलिटिकल पार्टीज में कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। इसमें बीजेपी से गोपीनाथ मुंडे ने बोला था, समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव ने बोला था, जेडीयू से शरद यादव ने बोला था, कांग्रेस से संदीप दीक्षित ने बोला था, सारे लोगों ने बोला था। लास्ट में मनमोहन सिंह ने अनाउंस किया कि कास्ट सेंसस होगा। पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इस बात पर राजी हो गया था कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। 2010 की डिबेट थी, 2011 डेट आप फिर से मुझसे ले लीजिएगा, आई थिंक इट्स 10th and 11th मई 2010। तो इस डिबेट 2 दिन की डिबेट थी। इसके बाद जिस दिन डिबेट ख़त्म हुई उसके बाद वाले दिन दिल्ली में लार्जेस्ट सेलिंग 13 इंग्लिश एंड हिंदी डेलीज ने एडिटोरियल लिखा कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। पूरा पॉलिटिकल क्लास इस बात पर जब सहमत था और देश में कंसेंसस बना पार्लियामेंट के अंदर कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए, तब मीडिया में एक दूसरा कंसेंसस बन गया कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे देश में जातिवाद बढ़ेगा वगैरह वगैरह, सारे उस तरह के आर्गूमेंट्स आए कि वो धीरे धीरे जातिवाद खत्म हो रहा है, लेकिन फिर से चीज़ें बढ़ जाएंगी, जातिवाद फिर फैल जाएगा, फिर वो ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, मतलब बहुत ही अजीब तरह का आर्गूमेंट था।
वो सारे एडिटोरियल्स अवेलेबल हैं इस समय, बुक में भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। तो अभी ये कैसे होता है कि एक इन इशूज़ पर रिजर्वेशन हो, एट्रोसिटी हो, कास्ट सेंसस हो, इन सारे इशूज़ पर पूरा मीडिया का एक कंसेंसस होता है कि वो हिंदू अपर कास्ट के फेवर में खड़ा होगा। और ये दसियों बार हो चुका है, इसकी स्टडीज़ भी हो चुकी है। जैसे नॉन अलाइंड मीडिया नेटवर्क ने एक स्टडी की थी 1991 में, जब एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट था, कि क्या मीडिया ने किया, किस तरह कवरेज किया और किन लोगों को छापा, कौन छापने वाले थे। तो ये तीसरी जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये जो मीडिया है ये एक खास तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी हम सारे लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये अगर अभी आप इसमें हिंदू कास्ट अपर कास्ट डोमिनेशन जो है वो सिर्फ जैसे टेलीविज़न अगर है तो एंकर्स के लेवल पर नहीं है, किसी भी इशू पर अगर आप डिबेट हो तो आप देख सकते हैं कि उनमें किसको वो बुलाते हैं पैनल के तौर पर, वहाँ भी एक पैटर्न है। एक दो आपको दलित स्कॉलर्स वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन दलित स्कॉलर्स किस टॉपिक बोलने के आते हैं? कोई एट्रोसिटी होगी या कास्ट एज ए कैटेगरी जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तभी वो किसी दलित स्कॉलर को बुलाते हैं। अभी दिल्ली शहर में JNU में अफ्रीकन स्टडीज़ जो है उसके चेयरपर्सन SN मालाकार हैं, OBC हैं, माली कम्युनिटी से हैं। वो अफ्रीका के इस समय दिल्ली में सबसे बड़े स्कॉलर्स में गिने जाते हैं, खास करके साउथ अफ्रीका और सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका पर उनसे ज़्यादा काम किसी का नहीं है इन टर्म्स ऑफ पेपर्स एंड बुक्स एंड ऑल दैट, राइट। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री अगर अफ्रीका जाएगा या अफ्रीका का प्रधानमंत्री भारत आएगा, अफ्रीका इंडो अफ्रीकन रिलेशन पर जब कोई पैनल डिस्कशन होना है तब SN मालाकार नहीं बुलाए जाएंगे। SN मालाकार एक पैनलिस्ट के तौर पर सिर्फ तभी बुलाए जाएंगे जब कास्ट का इशू सामने आएगा। अभी विवेक कुमार की, प्रोफेसर विवेक कुमार JNU में सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, उनकी एक्सपर्टीज डायस्पोरा है, डायस्पोरा पर उन्होंने सारा काम किया, डायस्पोरा पढ़ाते हैं। लेकिन डायस्पोरा पर से रिलेटेड किसी भी डिबेट में आज तक इतने साल में विवेक कुमार को नहीं बुलाया गया। अभी भारत के सबसे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट में जो पद्मश्री पद्म भूषण वगैरह क्या क्या मिला है पता नहीं, इस समय डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद। जगदीश प्रसाद को कभी भी कार्डियोलॉजी या हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर नहीं बुलाया जाएगा। ये सारा फिक्स है कि आप अब डॉक्टर कौशल पवार वो संस्कृत की स्कॉलर है, संस्कृत में PhD की है, संस्कृत पढ़ाती है, लेकिन संस्कृत या धर्म से रिलेटेड किसी मनुस्मृति पर उनका ये PhD का टॉपिक भी ऐसे किसी वो संस्कृत के किसी रिलीजियस टेक्स्ट पे ही है। लेकिन ऐसे किसी टॉपिक पर जब रिलीजन एज ए कैटेगरी डिबेट में हो, संस्कृत एज ए लैंग्वेज डिबेट में हो, कौशल पवार को आज तक नहीं बुलाया गया है, आगे भी नहीं बुलाया जाएगा। मोटे तौर पर जो पैटर्न है उससे लगता है। तो आप असल में रिड्यूस कर रहे हैं, उनको फिक्स कर रहे हैं कि आप अगर दलित स्कॉलर आप इस टॉपिक पर बोलेंगे, आप जो सेकुलर किस्म के टॉपिक है उस पर आप नहीं बोल सकते हैं, आपको नहीं बुलाया जाएगा। ये भी एक पैटर्न है जो कि आपको, जब हिंदू अपर कास्ट डोमिनेशन की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ न्यूज़ रूम में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ और एडिटर्स की बात नहीं है। ये उन्होंने जब वो किसी टॉपिक पर एडिट पेज का आर्टिकल लिखवाना है, इसे लेके सब जगह वो डोमिनेशन आपको दिखता है। और ये प्रोड्यूस कर रहा है कंटेंट जो इस देश के ऑलमोस्ट 85% पॉपुलेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ है। और उसमें अगर आप अपर कास्ट वुमेन को इंक्लूड कर दें तो वो लगभग 93% पॉपुलेशन न सिर्फ मीडिया में बहुत कम है बल्कि उनके हिसाब से कंटेंट भी नहीं बन रहा है। अब अगर जैसे अभी देखिए, आपको एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि अभी तक यूपी में ऐसा कभी कोई ओपिनियन पोल नहीं आया है जिसमें बीएसपी को बढ़त दिखाई गई है। 4 बार बीएसपी की सरकार बनी है, ऐसा कोई ओपिनियन पोल नहीं आया है जिसमें कि लालू यादव जीतते हुए दिखाए गए हों, जबकि बहुत अच्छी मेजोरिटी से उनकी सरकारें बनी। 4 बार वो सरकार में रहे, 3 बार अपनी सरकार बनी है, इस बार साथ में सरकार है। लेकिन कभी भी ऐसा ओपिनियन पोल नहीं आ सकता है जिसमें कि इनको जीतता हुआ दिखाया जाएगा, ऐसा कभी ओपिनियन पोल नहीं होता है। अब आप कह सकते हैं गलती हो जाती है, खास तरह से गलती क्यों हो जाती है, हर बार वैसी गलती क्यों होती है? आप ये क्यों नहीं देख पाए कि जैसे 11 ओपिनियन पोल्स हुए थे इस बार बिहार इलेक्शन से पहले, किसी को भी क्यों नहीं दिख रहा था कि इस बार सरकार कैसी बनने वाली है? कैसे क्यों ऐसा दिख रहा था सबको कि बीजेपी बिहार में मेजोरिटी में आने वाली है? और दरअसल ये जो ओपिनियन पोल्स हैं ये सिर्फ ओपिनियन पोल्स नहीं है, ये ओपिनियन मेकिंग पोल्स भी हैं।
जब आप एक पार्टी को ओपिनियन पोल में आगे दिखाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट उसका आता है। लोगों को लगता है कि अपना वोट क्यों बर्बाद कर दें, ये MLA बन रहा है, इसको मैं अपोजिशन पार्टी वाला क्यों दे दूँ, हमारे इलाके में दिक्कत होगी। फिर वो रिसोर्स जो आने लगता है, सेठ लोग पैसा भी जीतती हुई पार्टी को लगाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जब ओपिनियन पोल में कोई जीतता हुआ जब दिखता है तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स उसके साथ काम करने लगते हैं। तो इसको आप ओपिनियन मेकिंग पोल्स भी कर सकते हैं कि दीज आर ओपिनियन मेकिंग पोल्स। और ये चुनाव को के बारे में सिर्फ बताने के लिए नहीं होता है, बल्कि चुनाव के बारे में ओपिनियन मेकिंग के लिए भी पोल का इस्तेमाल होता है। तो ये लगातार होने वाली गलतियां मैं आपको बता रही है कि मीडिया का जो खास तरह का स्ट्रक्चर है वो खास तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है। और आप 50 तरीके से देख सकते हैं। सिर्फ आप किसी एक कैरेक्टर को ले लीजिए इंडियन पॉलिटिक्स के, जैसे लालू को ले लीजिए। लालू को लेकर जो सारा कवरेज है आप देख लीजिए कि वो आदमी कैसा है, और जैसे उसके करप्शन का क्वांटम देख लीजिए, जैसे फॉरवर्ड स्कैम का क्वांटम, इसके मुकाबले आप 2G स्कैम का क्वांटम देख लीजिए, आपको ऑलमोस्ट 10 टाइम बड़ा क्वांटम है। लेकिन 2G स्कैम के कल्प्रिट्स कौन है आपको शायद ढूंढने को नहीं मिलेगा। उससे बड़ा स्कैम कोल स्कैम था। कोल स्कैम का आप इस हॉल में मौजूद किसी भी आदमी को क्या एक भी कल्प्रिट का नाम याद है? कोल स्कैम नहीं, और एक आदमी को पता है कि पारिक एनीवेज। और ये मीडिया ने हमको ऐसा बना दिया है। हम जैसे मैंने कहीं पर लिखा भी था कि लालू का पहली बेटी पैदा होने से पहले ज़्यादा बच्चे पैदा हो चुके थे, 8 जिंदा रहे, लेकिन ज़्यादा बच्चा पैदा करने का कोई कार्टून नरसिम्हा राव नहीं बना है। ज़्यादा बच्चा कौन पैदा करता है? लालू यादव पैदा करता है। मतलब आप और नहीं, हम सब लोग, आप बताइए ना, आपको कितने लोगों को पता था कि NTR के कितने बच्चे थे? नहीं पता ना, 14 बच्चे थे। लालू का पता है, NTR का नहीं पता है। ये हम लोग असल में इस पूरे प्रोसेस को हम बोले कि मीडिया का मामला है, ऐसा नहीं है। हम उसके अंदर हैं, उस पूरे प्रोसेस के अंदर है, पार्ट है। वो विक्टिम के तौर पे हैं, पार्टिसिपेंट के तौर पे हैं। हम सबका से लेना देना है, हम सबकी ओपिनियन उससे बनती है। हम सब अपने मीडिया दरअसल एक चीज़ और है कि मीडिया की जो एक थ्योरी है कि मीडिया हो सकता है कि X टॉपिक पर आपकी क्या ओपिनियन हो ये फिक्स नहीं कर दे, लेकिन आपको किस टॉपिक पे सोचना है, किस टॉपिक के बारे में आपको बात करनी है, तो अपने दोस्तों के बीच किस बारे में बात करेंगे, ये बहुत हद तक मीडिया फिक्स कर देता है। जैसे अगर महाराष्ट्र में कोई दिन तो ऐसा नहीं होगा जैसे किसी भी स्टेट में जिस दिन 4 या 5 रेप की घटनाएं ना हो, ऐसा कोई स्टेट नहीं है भारत में, सब जगह होता है। अब यहाँ के न्यूज़पेपर्स उन रेप की घटनाओं को नहीं छापते, ऐसा भी नहीं है। जैसे भंडारा में एक रेप हो गया, लोगों ने सड़क जाम कर दिया, भंडारा के अखबार में तो जरूर छपेगा। लेकिन भंडारा के उस रेप की घटना और ऐसी सारे रेप की घटना को अगर मैं बम्बई के में पहले पन्ने पर हर दिन छापना शुरू करूं कि महाराष्ट्र में 5 रेप हो गया, 4 रेप हो गया, 3 हो गया, भंडारा और औरंगाबाद और वहाँ भी रेप हो गया, 5वें दिन आपको लगने लगेगा कि महाराष्ट्र में जंगल राज। 5वें दिन आप परेशान हो जाएंगे, आपको लगेगा कि गया महाराष्ट्र तो लॉ एंड ऑर्डर बिहार से पीछे। लेकिन अगर वो खबर जिले के अखबार में छपी, आपको नहीं बताया गया, तो आपको लगेगा कि लॉ एंड ऑर्डर जनरली ठीक है, मतलब इतना बुरा भी नहीं। ऐसे ही हमारा ओपिनियन बनता है ना। सच कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? आप सोच लो, आप जरा सोच के देखो, हर दिन सुबह अखबार खुले पहली हेडलाइन छपे कि महाराष्ट्र में 5 बलात्कार हो गए, आपको लगेगा कि ये राज्य रहने लायक नहीं है। तो सच कह रहा हूँ, ऐसे ही होता है। तो आप उसमें पार्टिसिपेंट हैं, उस प्रोसेस के, आप हैं उस गेम के अंदर हैं। आप चोट पड़ेगी तो आप पे ही पड़ेगी, और फायदा भी होगा तो आपको होगा कुछ ना कुछ तो होगा उस प्रोसेस के अंदर। अभी मैं पहले, दूसरे और तीसरे पॉइंट को मोटे तौर पर मैंने डील कर लिया। अभी एवरेज इंटरनेट स्मार्टफोन वाले जो नए फ़ोन हैं उसका एवरेज कॉस्ट इस समय 9,000 है, और ये घट के आपको नीचे वाला लेंगे तो 3,000 4,000 पे है, सेकेंड हैंड होते पे 1,500 है। तो ये जो एक्सपेंशन होगा इंटरनेट का, और इसकी वजह से न्यू मीडिया का जो एक्सपेंशन होगा, ये आप समझ सकते हैं भारत में किस सोशल ग्रुप्स के बीच होने वाला है। और इन सोशल ग्रुप्स के बीच अगर एक्सपेंशन होने वाला है और मिडिल क्लास का एक्सपेंशन भी उधर होने वाला है, तो जो
SC/ST OBC के जर्नलिस्ट हैं, इनके लिए भी स्पेसेस इनको देर से बढ़ाना पड़ेगा, बहुत दिन तक नहीं रोक सकते हैं इसको, इनके लिए कंटेंट इनको बनाना पड़ेगा, तो उधर भी मौका पड़ेगा। और इधर तो खैर अब नया शुरू हुआ है, ये इधर स्पेस तो बढ़ने ही वाला है। एक सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत सारा समय चाहिए कि मेरा जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस कैसा था, और सब कुछ अगर इतना बुरा है तो मैं कैसे एडिटर बन गया, इसको मैं बात के लिए रखता हूँ कभी के लिए। थैंक यू।